Assalamu alaikum. This is Madhur Adil from OCLP UMT, Office of Corporate Linkages and Placements at University of Management and Technology. Under the vision of President UMT, Mr. Ibrahim Hassan Murad, has launched high-impact, iconic learning and development-focused virtual week 2021 on the theme of chasing the dream career to prepare the students and facilitate them to emerge as marketable graduates for the future world of work. This Career Week is one of its kind engaging platforms that has brought together the biggest, smartest, and brightest gurus, speakers, panelists, and success icons from all walks of life. Furthermore, this Career Week has also provided a platform to the corporate sector to introduce their companies to a diverse crowd of students and to get a pipeline of talent as your future workforce, as we have 25,000 plus students and 20,000 plus alumni, and they are not only their potential employees for the future, but their current consumers and future influencers as well. Talking specifically about today's theme, our today's theme is Shape to Studio, whereby we have planned this session interview skills and 30-second elevator pitch by RKB Bearings Industries for all our students. Welcome all aboard. The purpose of this session is to escalate and enhance the marketability of UMT students in a sure way of being more prepared for starting the career and being more prepared for their interviews. Prior initiating the session, I would like to give a brief introduction about the speaker, Mr. Khurram Shahzad. He is an engineer and MBA graduate marketing from, he has an experience of 21 plus years in the corporate industry in Pakistan as well as in Europe. Currently, he is serving as country manager, Pakistan at RKB Europe SA. He is responsible for the company's operations in Pakistan with full profit and loss accountability, strategic growth, expansion plans, developing business ecosystem, and distributor development. He has extensively traveled to Asia, Middle East, and Europe for business and professional growth. He has served as application engineering specialist at SKF, project in charge, SMS at Tuerki Steel, and plant manager, CCM at Mughal Steel in the past. So, where my pronunciation won't be correct, I would like you to please correct me. With this current assignment at RKB, he has started the RKB Liaison office in Pakistan from scratch and developed business infrastructure, including multiple partners, distributors, to promote and sell RKB products to industrial clients. Additionally, during the last 10 years of his career, he has been conducting training courses, including maintenance, management, rolling bearing, technology, lubrication, management, bearing calculations, bearing root cause, failure analysis, bearing mounting and dismounting, laser alignment, and applications. I would also like to give a brief introduction about the company to whom he is representing. Company RKB Bearing Industries Group is a Swiss manufacturing organization which has been operating in the bearing industry since 1936. With a monthly production capacity exceeding 350 tons of machined textiles, and these are one of the world-class manufacturers. Now I would like Sir Khurram to resume with the session, and over to you, sir. Welcome again. Thank you so much. Thank you so much for the generous interview. And I would like to ask you if you can hear my voice properly. Is this good to go? Yes, sir, it's audible. Yes, sir. It's perfectly fine. Perfect. So I would like to say Assalamu alaikum to everybody who is listening me outside over there through Zoom meeting. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam from your side. Walaikum assalam. So Walaikum assalam, sir. Walaikum assalam, sir. Walaikum assalam, sir. Walaikum assalam. Very good. Walaikum assalam. Walaikum assalam. It's a good icebreaker and energizer. So let's start with the session, and today's topic is
uh, interview skills. Interview skills. So now you can see me, and let's start the session. So interview skills, everybody who is basically right now studying at this university is someone who is going to attempt an interview later or sooner, maybe after completing your education, even right now during your academic career, there are chances that you go to attempt some internship interviews and some job interviews as well. So you have to go through this process, and then only you can get hired and get a job, and then you can start your professional career. And it is very important for all of you that you should be prepared to handle the questions any interviewer is going to ask you in the session. And more importantly, you should know what interview is going to look like to you when you will be going to attend your first interview. The first question of your interviewer is, what are they going to ask you? What should be your answers? So anybody out of the audience, if you can share with us about your first interview incident. I'm calling it incident because most of the time when we go for the first interview, it looks like an interesting experience. So any participant, if you would like to share your first interview experience with us, and then from there we start the session. Yes, please. You can unmute yourself and start talking. Mashal Hasnath, Kashif Ilahi, Alishba Amjad, anybody? Please unmute yourself and start talking to everyone. Nimra Iqbal. So, who is going to start talking to us? Saklan Sarwan. Yes. Yes. Alishba Amjad. Mudassar Naim. Sir, can I start? Yes, please. Assalamu alaikum, sir. I got a chance to make an interview with the head of the school, the educators, and I went there for. Yes, now you can start, please. Kindly. Yes, sir. I went their school for the teaching job, and the first question asked by myself that what are you doing currently? So what are you doing right now? And secondly, what is your interest, and how are you? Why are you there? Please continue, Alishba. Okay, sir. Sir, in response, obviously, I answered all these questions. And then there were, two people in front of me, and that was my first interview. And those teachers were very, asking some complicated questions that have any other experience? And then obviously I am the fresher, so I don't have any kind of special experience. So that's why I just told them that I am doing this in my education, and I want to do, to start my career in this industry. And then they move forward to talk about my hobbies and interest, and the capability of mine to survive in this environment, and that's all. So what was the major challenge you faced during that interview? Alishba, are you there?
Sir Yes, Khurram yes. basically means, Sir Yes. Khurram basically means if you faced any kind of a challenge, कुछ आपको ऐसा लगा हो जो जिसका आपको आंसर ना आता हो, ये तो basic questions होते हैं which they asked you. What was challenging in it? Because incident का word उन्होंने use किया. Incident means something which was unusual, which you were not prepared for. Yes. Yes. What can be discussed here actually? So that I we will can request start the all the discussion. students, I will request all the students to be relevant. Please listen to this conversation and then join for the comments. Otherwise, please write your comments in the comments section. Sakhuram, over to you, please. Right, Miss Mahnur. Okay, so let me share my screen so that you can see the presentation slides and we can start the discussion from there. So I have to admit all the participants who are in the waiting list actually along the side. No, sir, we have a co-host for that. I would like That's you to just, That's good. That's catch up with the session. Yes, sir. okay. Perfect. Thank you. So let's start it formally. Let's discuss about interview skills, and the starting point is why we need to understand the interview skills and why I need to have a command on being able to handle difficult, even normal interviews. The most important question before starting the session is if you don't know where you are going, any road will get you there. Because ultimately, you need to know what is the job, what is the company, what are the job requirements, what I am going to bring on the table, what they are going to offer you, and why you should go for this interview, why you should skip this interview, why you should uh, keep this interview on a waiting list, or why this job is important for you, and what will you get out of it. These are all questions which are equally important to consider before you accept any interview offer. Once you send your resume, you get the interview call, then you have to decide either this job is good for you, either this opportunity is good for you and you're going to get it, or you're going to skip it, because ultimately along the side you are getting some other offers also from other employers. So you have to pick and choose the best job for yourself. So how can you do that? The most important thing is you should know which company is going to offer you this job, what is the position, what is the salary, what are the other fringe benefits, and then what is the career development opportunity for yourself if you go and get this job. Let's see step by step. Normally people ask me, sir, how should I start my career? From where should I start my career? But I always ask them, how do you want to end your career? That's more important question. After 20 years, after 30 years, where do you see yourself? Of course, this is a very difficult question. It's not easy to answer. It's not easy to be able to answer to someone in your age. Before starting your career, you are totally unaware about your aspirations, of your strengths and weaknesses, and your passion and your gifts. So ultimately, when you start your career, you will start working with some company, then you will realize this job has some challenges to offer, this job has some opportunities to offer to you, and either this is good for you or not. So then you will realize where you are going on your career path. Is this good to go, or you should need to stop and rethink about your career progress? Maybe you consider to switch to some other category, about some other discipline of the same field. Maybe you are mechanical engineer. You can think about working in planning, you can think about working in production, maintenance, operation, project management, any discipline which is basically a part of the overall mechanical department. So this is the reason
you should try to address this question. How do you want to end your career? For example, हम क्यों इसका जवाब नहीं दे पाते? आप में से कोई भी पार्टिसिपेंट जो अभी लेट्स सपोज महानूर आपसे बात करते हैं, आप को होस्ट हैं और Yes, sir. आप अटेंटिव हैं और अभी साथ मौजूद हैं. आप बताएं आप अपना करियर कैसे एंड करना चाहेंगे? I would want to end my career जहाँ पर I have a complete sense of contentment at the end. के now I have done my part. I have served to the community what I wanted to do. As a psychologist, what I wanted to do, I've served the community when I was really energetic. Now I want to be retired, and now I want to enjoy the perks of perks of retirement. कि किस तरह से मुझे मतलब when I'm aged, बुढ़ापा जब आ जाएगा या जो भी इस तरह का above 60, when I am I'll be counted as a senior citizen, तो मैं सारे perks वो enjoy कर सकूं, and I could stay home, I could have a cup of tea with along with my partner, or इस तरह से I would love to dream about that. Very good. बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये थोड़ा सा जेनेरिक नहीं लग रहा? हर शख्स यही चाहता है. Okay. अगर हम इसको थोड़ा स्पेसिफिक करें, फॉर एग्जांपल एज अ साइकोलॉजिस्ट आप पाकिस्तान में सबसे बड़ा साइकोलॉजी का इंस्टीट्यूट रन कर रही होंगी. आप लेट्स सपोज ईदी के मुकाबले पे एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं, आप काउंसलिंग सेंटर खोलना चाहते हैं, आप फॉर एग्जांपल जो साइकोलॉजी के अंदर रहते हुए ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में एंगर मैनेजमेंट थेरेपीज में जाके कुछ करना चाहते हैं. यहाँ आप इस सब को आप कुछ और करना चाहते हैं, लाइक यू वांट टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, व्हाटएवर. सो यू कैन डू एनीथिंग. इट्स नॉट, आपकी साइकोलॉजी की डिग्री इज नॉट अ लिमिटेशन फॉर योरसेल्फ टू एक्सप्लोर अदर वेन्यूज ऑफ योर लाइफ. सो इसलिए हमें थोड़ा टेंजिबल होके ये सोचना पड़ेगा कौन सी कंपनी, क्या बिजनेस, क्या पोजीशन, क्या क्राइटेरिया के ऊपर जाके. लेट्स सपोज हम कहते हैं सीएसएस करने के बाद गवर्नमेंट ऑफिसर बन के 21st ग्रेड के ऑफिसर के तौर पे रिटायर होना, आर्मी में जाके लेफ्टिनेंट बन के रिटायर होना, कर्नल बन के रिटायर होना, सीईओ ऑफ द कंपनी बन के रिटायर होना जो कंपनी ये चीजें कर रही होगी. इसके अकॉर्डिंगली जब तक हम नहीं सोचेंगे ना, या हम इतना अपना विजन ब्रॉडन नहीं कर पाएंगे, इतनी हिम्मत और हौसला नहीं पैदा कर पाएंगे खुद में कि हम अपने बारे में, हम थोड़ा शाय फील करते हैं ये इतना डिटेल में जाने से, और हम ये सोचते हैं कि अभी मुझे पता नहीं है. Maybe it will take a lot of time to reach to that point के जहाँ मुझे ये सब चीजें पता चल जाए. So वो point आज है, अभी है. Right now is the time when we have to think about this important aspect of our life. Success or failure क्या है हमारे लिए, career क्या है हमारे लिए, क्या एक employment, क्या business, इन दोनों में से एक differentiate करें. 5 साल employment, अगले 25 साल business, बिल्कुल डिफरेंशिएट किया जा सकता है, जस्ट टू गेट द डिजायर्ड रिक्वायर्ड स्किल सेट्स एंड कॉन्टेक्ट्स, नेटवर्किंग एंड एवरीथिंग जो जॉब पे रहते हुए वी कैन गेट. इसी तरह से हमें सॉलिड पॉइंट चाहिए वो जहाँ पे आप, मैं, हम अपना करियर एंड करना चाहेंगे. उससे क्या होगा, उससे हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता चल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहता हूँ सेल्स डायरेक्टर के तौर पे मैं अपनी करियर का एंड करूँ, लाइफ का नहीं, करियर, प्रोफेशनल करियर. तो अब मुझे पता है मैंने सेल्स मैन से शुरू करना है, ठीक है ना. अगर मैं कहता हूँ मुझे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में पाकिस्तान में किसी कंपनी के चेयरमैन के तौर पे मैं चाहता हूँ कि मैं अपना करियर एंड करूँ, तो इसका मतलब मुझे आज बिजनेस शुरू करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग का. इसलिए होता क्या है कि 2 साल 3 साल बैंकिंग में काम करके पता चलता है ओहो ये तो सही नहीं है, मुझे क्या करना है, मुझे कुछ और करना है, पता तब भी नहीं होता क्या करना है. ऐसे ही होता क्या है, मार्केटिंग में एमबीए कर लेते हैं, एचआर की जॉब मिले शुरू कर लेते हैं, और 2 साल बाद ना हम एचआर के रहते हैं ना हम मार्केटिंग के रहते हैं. तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि इसके ऊपर चाहे आज इसका आंसर मिल जाए, 10 साल बाद मिल जाए, 5 साल मिल जाए, इस पे कोशिश करते रहना चाहिए हमें कि हम अपना करियर कैसे आगे लेके जाना चाहते हैं. एंडिंग पॉइंट वो कहते हैं, आपने किताब पढ़ी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल, मिस मानूर? No sir, मैंने नहीं पढ़ी. Okay, definitely you must read that.
उसमें Okay. 6th या 5th हैबिट है, उसका मतलब है ऑलवेज स्टार्ट विद द एंड इन योर माइंड. और द Okay. मोस्ट इम्पोर्टेंट सीन ऑफ आवर लाइफ इज टू स्टार्ट आवर करियर, और वो हम बगैर कीपिंग द एंड इन आवर माइंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट. तो इसका मतलब Yes. कल हमने क्वेश्चन पूछा था कि अगर इंडस्ट्रियल इंजीनियर को हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जॉब दें 40,000 की, तो आप कर लेंगे शुरू? तो उन्होंने कहा बिल्कुल. तो मैंने कहा अगर आपको क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में 60,000 की जॉब मिल जाए, साथ गाड़ी भी मिल जाए, तो उन्होंने कहा वो तो मैं फौरन कर लूंगा. इसका मतलब यू आर नॉट श्योर फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट. तो इसलिए आप, मैं लेट सपोज कितने सेगमेंट है हमारे पास, एकेडेमिया इंडस्ट्री में चले जाएं तो उसमें आपके पास आ जाएगा शुगर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री. कितने सेगमेंट्स है? पावर इंडस्ट्री, ग्रीन एनर्जी, ऑटोमोटिव. सो हमें ये माइंड मेकअप करना होगा कि किस सेगमेंट में, किस इंडस्ट्री में, किस डिपार्टमेंट में, किस पोजीशन से स्टार्ट लेना है. और अगर हम खुद डिसाइड करके लेंगे ना, तो ना रिग्रेट्स होंगे, सेकेंडली हम अपना 100% दे पाएंगे उस पर. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे जरूर आप अपना थिंकिंग प्रोसेस जो है इसको स्टार्ट करें आज से. और नेक्स्ट पे हम देखते हैं कि आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होना चाहिए. बिफोर द इंटरव्यू, बिफोर इंटरव्यू आपको कुछ काम करना है ताकि आप प्रिपेयर्ड हो इंटरव्यू के लिए. वो क्या है? रिसर्च द कंपनी एंड रिव्यू द जॉब डिस्क्रिप्शन. अगर ये हम बात करें जब इंटरव्यू की कॉल आ गई, आज आपको पहली कॉल आई एंड यू आर गोइंग टू अटेंड दिस इंटरव्यू कॉल, मे बी 2-3 days later you have to go to the company. आज से आप शुरू कर दें रिसर्च द कंपनी एंड रिव्यू द जॉब. फॉर एग्जाम्पल 2010 में मुझे एक जॉब ऑफर आई SKF से, और मुझे नहीं पता SKF क्या है. तो मैंने गूगल पे उसको सर्च करना शुरू किया. मैंने गूगल अलर्ट लगा दिया. मैंने गूगल को कहा कि दुनिया में कोई भी न्यूज आएगी ना SKF के नाम से, उसका लिंक मुझे ईमेल होना चाहिए. आज की डेट में भी ये फीचर अवेलेबल है, आप कर सकते हैं. तो आप उस कंपनी के बारे में उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ें, उसका ग्लोबल पर्सपेक्टिव एंड लोकल पर्सपेक्टिव में उसकी सेल्स को रिव्यू कर लें, उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स की वेबसाइट्स देख लें. मैंने तो यहाँ तक किया था कि उसके एम्प्लॉइज के लिंक्डइन कनेक्शंस के थ्रू कनेक्ट करके, फोन करके, उनसे बातचीत करके सारी मालूमात ले ली थी कि वो कंपनी में क्या सिस्टम है, कितने लोग हैं, किस तरीके से काम करते हैं. ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ द कंपनी, उसके जितने जर्नल शाया हुए थे पाकिस्तान में सारे पढ़ लिए थे. सो उससे क्या होता है कि जब इंटरव्यू में आप बैठे होते हैं तो आपको पता होता है कौन इंटरव्यू ले रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, आपको किस तरह के जवाब देने. देन यू हैव टू रिव्यू रेज्यूमे एंड कवर लेटर. अपना कवर लेटर एंड रेज्यूमे उस कंपनी के अकॉर्डिंगली आपने बनाना होता है. फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा हुआ है कि आई वॉन्ट टू बी ए पार्ट ऑफ अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री और बैठे हुए स्टील इंडस्ट्री में, या आप कहते हैं आई वॉन्ट टू बी ए पार्ट ऑफ सेल्स कंपनी और बैठे हुए आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू देने के लिए, तो कंट्रोडिक्शन हो गई. तो आपने अपना रेज्यूमे और कवर लेटर उसके अकॉर्डिंगली रिव्यू कर लेना. देन प्रिपेयर योर थीसिस, पोर्टफोलियो, एग्जांपल्स ऑफ टेक्निकल वर्क. अगर आपने कोई लेट सपोज आप रेडियो पे जा रहे हैं आरजे के लिए, तो अगर आपने यूनिवर्सिटी के रेडियो में काम किया हुआ है तो आप उसको मेंशन करें. और अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसको मेंशन ना करें, वो कोई वैल्यू ऐड नहीं करेगा. ठीक है. रिसर्च लोकेशन एंड प्लान राउट. आपको पता होना चाहिए आपकी अगर जॉब हो जाती है तो किस लोकेशन पे पोस्ट किया जाएगा आपको. और ये बात आप पूछ सकते हैं HR में कॉल करके इंटरव्यू से पहले भी. और वैसे भी आइडिया हो जाता है कंपनी की लोकेशंस कहाँ पे हैं, प्लांट्स किधर हैं, ऑफिसेस किधर हैं, ये जॉब हेड ऑफिस बेस्ड है, ये प्लांट बेस्ड है. एंड ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस. अब जब इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएगा तो आपने जो सवाल पूछने हैं उसकी लिस्ट तैयार कर ले. कॉन्टेक्ट लिस्ट, रेफरेंसेस, अपने कॉन्टेक्ट जो लिस्ट रेफरेंसेस हैं उसकी कॉन्टेक्ट लिस्ट तैयार कर लें. अगर इंटरव्यू में आपसे पूछें कि आप किस कंपनी में काम करते थे या आपने इंटर्नशिप कहाँ की है और वहाँ पे कौन थे आपके इमीडिएट मैनेजर, तो आप उनको कहें जी ये हैं, आप इनसे फोन करके मेरा रेफरेंस चेक कर सकते हैं. और फिर इंपॉर्टेंट चीज, प्रॉपर अटायर. आप
जिस इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली तैयार होके जाएं, ताकि आप प्रोफेशनल लुक, आपका फर्स्ट अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए। ठीक है, एक्सक्यूज मी यहाँ पर सर। कोई क्वेश्चन हो तो जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी बेटा। सर मैं एक चीज़ यहाँ शेयर करना चाहूँगी। बैक इन 2019 मैंने एक टेस्ट क्लियर किया था, एनटीएस के दिया हुआ था, पंजाब कोऑपरेटिव बैंक का। तो सर वो OG3 की जो थी वो पोस्ट थी। तो जब उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया तो अपनी तरफ से मैं तैयार होकर गई थी कि हाँ ठीक है, मुझसे ऑफिस बेस ऐसे क्वेश्चंस किए जाएंगे। लेकिन सर बेसिकली जो पोस्ट थी वो उसमें उन्होंने एग्रीकल्चरल बेस्ड जो थे वो लोन्स जनरेट करने थे। तो उन्होंने जब मुझसे मेरा इंटरव्यू पूछा, मेरे फादर का पूछा वो क्या करते हैं, तो मैंने बताया ऐसे जो है वो उनका अपना जो है वो कल्टीवेशन है और ये सब बिजनेस है। तो सर उन्होंने मुझसे जो पूछा, जो रिलेटेड चीज थी जो मुझे नहीं पता थी, उन्होंने मुझसे पूछा खरीफ की कौन सी फसलें होती हैं और रबी की कौन सी फसलें होती हैं। सर मुझे नहीं पता था वो। और बिसाइड सर मैं उस इंटरव्यू की जो थी वो टॉप स्कोरर थी, मैंने 100 में से 76 मार्क्स स्कोर किए थे, लेकिन सर उन्होंने मुझे जॉब के लिए कंसीडर नहीं किया। सिर्फ इस बात पे कि आपने उनको फसलों के नाम नहीं बताए? जी सर। क्या ये आपकी मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन में कोई इसका रोल था? सर उस वक्त तो उन्होंने ऐसे जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं दी हुई थी, लेकिन जब उन्होंने मुझसे पूछा ना कि आपके फादर कैसा बैकग्राउंड है और यहाँ पर जो हाँ। है वो हम लोन्स इस तरह से जनरेट करते हैं, तो सर प्लीज इग्नोर दी थोड़ी देर के ओके। लिए। तो सर उन्होंने ये कहा कि जब आपको पता ही नहीं है, मतलब उन्होंने कहा कि आपके फादर जो हैं वो आपकी क्रॉप्स आती हैं घर में, तो मैंने कहा जी आती हैं। उन्होंने कहा चले आप मुझे ये बता दें कि सर्दियों में कौन सी आती हैं और गर्मियों में कौन सी आती हैं। सर मैं फिर सोच सर्दियों में कौन सी आती है और गर्मियों में कौन सी आती है। तो सर मैंने उस चीज से ये सीखा था, अभी आपने भी ये रिपीट किया कि रेलिवेंसी मतलब आपको रेलिवेंट नॉलेज होना चाहिए। आपके मार्क्स इतना स्कोर किया है, मुझे उसका फायदा नहीं हुआ था स्कोर करने का इतना। आप सही थैंक यू कह रहे सर। हैं। अब बैंक में, एग्रीकल्चर बैंक में जब जाएंगे, अब जैसे लेट सपोज मुझे अगर इंटरव्यू कॉल आती है तो एग्रीकल्चर बैंक में मैनेजर है मेरे एक कजन, मैं उनको फोन करूंगा, उनसे वो सारी मालूमात ले लूंगा जो उस इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। और खास तौर पे क्योंकि काम से रिलेटेड है ना, जो लोग फसल लगाते हैं, जो किसान हैं, वो आते हैं आपके पास उसके लिए, लोन के लिए, तो आपने उनको डील करना होता है, तो आपको ग्राउंड लेवल पे जाके वो मालूमात होनी चाहिए। तो उनको रफ एंड टफ हार्डकोर किस्म का बंदा चाहिए था जो उस रेलेवेंट फील्ड से आए हुए लोगों को हैंडल कर सके। तो वो शायद आपके लिए सूटेबल नहीं थी। सिर्फ मार्क्स लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, दो तीन एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे भी साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद है, पहले आपका फिल्टर होता है आपका सीवी, जिसमें पता चलता है कि आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन एंड बेसिक जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो 100% मैच करती है जॉब की रिक्वायरमेंट से। नंबर 2 पे फिर आपका एक्सपीरियंस देखा जाता है और स्किल सेट्स देखे जाते हैं। और जब ये हो जाते हैं तो फिर टेक्निकल नॉलेज आपका चेक किया जाता है, जो रेलेवेंट इमीडिएट मैनेजर, चाहे वो बैंक से हो या इंजीनियरिंग से हो या साइकोलॉजी से हो, वो चेक करते हैं। और फिर उसके बाद लास्ट एंड बट नॉट लीस्ट जो स्टेप है वो है प्रोफाइल पर्सनालिटी असेसमेंट। कि आप अंडर प्रेशर कैसे काम करेंगे, टीम प्लेयर के तौर पे कैसे होंगे, लीडरशिप स्किल्स हैं या नहीं है, अंडर प्रेशर मॉरल्स आपके बेंड होते हैं या ब्रेक होते हैं, वो सब चीजें पर्सनालिटी से रिलेटेड लास्ट स्टेज पे चेक की जाती हैं, अगर प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से प्रॉपर इंटरव्यू कंडक्ट किए जाए तो। और अगर इनफॉर्मल किए जाएं, आपने बेसिक चीजें चेक की, बुला के मीटिंग की और आपने देखा कि ठीक है बेसिक चीजें, तो आपने हायर कर लिया, तो उसमें फिर वो डिपेंड करता है इनफॉर्मल इंटरव्यूज में। और बहुत सारे केसेस में आप देखते हैं, जैसे लेट सपोज एक ही डिपार्टमेंट में आपकी कोलीग हैं, वो छोड़ के चली गई, तो आपके बॉस ने पूछा कि आपके जानने पहचानने में कोई है ऐसा कैंडिडेट जो इस पोजीशन के लिए हो, तो आपने कहा हाँ मेरी क्लास फेलो है। तो उन्होंने कहा बुला लो कल इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू हुआ और सिलेक्ट हो गई, ना एड लगा कहीं पे ना कुछ ऐसा। सो ऐसी, इसको कहते हैं ग्रे जॉब मार्केट। ये बहुत ज्यादा पाकिस्तान में तादाद में ऐसे इंटरव्यूज, ऐसी कॉल्स होती हैं, ऐसी हायरिंग्स होती हैं। सो डिपेंड करता है कि आप क्या करना है। लेट्स सपोज मैंने जब 2010 में पाकिस्तान की इंडस्ट्री को छोड़ के स्वीडिश कंपनी के साथ काम किया, एंड देन आई रियलाइज कि इन द फ्यूचर आई विल नेवर बी एबल टू वर्क विद एनी पाकिस्तानी कंपनी। तो मैंने अपने आप को जब उस कंपनी के अकॉर्डिंगली अपग्रेड किया,
और डेवलप किया, तो अब मैं वापस पाकिस्तान के कल्चर में, पाकिस्तानी इन्वायरमेंट में काम करने के लिए अनसुइटेबल हो गया। तो इस वजह से हमें ये देखना पड़ता है कि हम चूज करें, खुद पिक एंड चूज करें कंपनीज। लोग कहते हैं ऐसा नहीं होता, इंटरव्यूज में हमें जहां मौका मिले कर लेना चाहिए, फॉरेन से रेफरेंस के थ्रू भी हो तो कर लेना चाहिए। क्यों? मेहनत करने से कतराते हैं हम, जान जाती है हमारी। हम रिसर्च करें, कंपनी के ऊपर रिसर्च करें, जॉब के ऊपर करें, सीवी प्रॉपर तरीके से बनाएं, फिर प्रॉपर तरीके से इंटरव्यू की तैयारी करें, फिर 2 से 3 इंटरव्यू में अगर सिलेक्ट नहीं हुए तो फिर डिसहार्ट भी ना हो। हाउ इज इट पॉसिबल? टाइम बहुत कम होता है। पेरेंट्स कहते हैं डिग्री कर ली, 3 महीने हो गए, जॉब क्यों नहीं हुई? सोशल प्रेशर भी होता है। सो ऐसे में इवेंचुअली अगर आपका ऐसा करियर है जिसको आप एंजॉय नहीं कर रहे, जिससे आपकी पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं हो रही और साथ आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रही, तो उस करियर का कोई फायदा नहीं होता। और बहुत सारे लोग इसलिए अपने करियर में अपसेट हैं, परेशान हैं, रोज घर जाते हुए सोचते हैं काश कल ना आना पड़े। क्यों? उन्होंने ऐसे ही जॉब्स अटेम्प्ट की हुई हैं और किसी के कहने पे समहाउ मिल गई, शुरू कर लिए। सो लेट्स कम बैक टू द मेन टॉपिक, इंटरव्यू स्किल्स। शुक्रिया, आपने अपनी केस स्टडी हमसे शेयर की। अब आपसे अगर पूछता है कोई भी इंटरव्यू लेने वाला शख्स, व्हाई शुड आई टेक द रिस्क टू हायर यू, चाहे आप इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं, चाहे आप किसी सीनियर या मिडिल मैनेजमेंट पोजीशन के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसका जवाब कैसे देंगे आप? और ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए मैंने लिखे हैं जिसके जवाब आपके साथ डिस्कस करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, ताकि आप जब इंटरव्यू में बैठें तो आप पहले से प्रिपेयर्ड हों अच्छे तरीके से हैंडल करने। जी मिस मानूर, आप किसी को रेकमेंड Sir, there's one question. आपकी बात जी से related, जो भी आपने बात की है उससे related, there's one question here. So the question is, what do you mean when you say that by upgrading yourself according to the foreign market, is it difficult to be involved again in our local market? मतलब, clearly the answer is yes, it is difficult, but what are the setbacks of our local market? वो जरा please explain कर दीजिएगा। Exactly. keeping in mind के यहाँ पर MBA, engineering और ये सारे platforms, सारे domains के बच्चे हमारे पास इस time। yes sir, all disciplines are included here in this session right now. So इसको मैं आसान कर देता हूँ समझाने के लिए कि अगर आपको ऐसे इन्वायरमेंट में काम करने का मौका मिले जहाँ पे सब पंक्चुअल हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं, कल्चर्ड हैं, और फिर उसके बाद सबकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी लेती है और आपको की राय को शामिल किया जाता है कंपनी के स्ट्रेटेजिक डिसीजंस के अंदर, आपको लीडरशिप रोल अपनी अपनी कैपेसिटी में निभाने का मौका मिलता है और आप फील करते हैं कि यू आर considered to be part of the company and senior management, and then every year you feel like कि आप नई स्किल सीख रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं अपने आप को और आप ग्रो कर रहे हैं और आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ती जा रही है। ऐसे में उस सारे को छोड़ के, अगर लेट्स सपोज आरकेबी को छोड़ के मुझे मुगल स्टील मिल्स कहता है कि आप हमारे पास आ जाएं, हम आपको 5, 6, 7, 8, 10 लाख रुपए पे करते हैं, नॉट ओनली फॉर द सेक ऑफ मनी, मैं वापस उस कंपनी में, लोकल इंडस्ट्री में जाऊंगा जहां पे एक मैन्युफैक्चरिंग इन्वायरमेंट में या प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में या मेंटेनेंस या ऑपरेशन इन्वायरमेंट में दोबारा से जाके मैं काम करने लग जाऊं, सिर्फ इसलिए कि वो मुझे ज्यादा पैसे दे रहे हैं। सारे एस्पेक्ट्स को जहन में रख के आपने ऑफर्स को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना होता है ना। सो मेरा ये मतलब नहीं कि लोकल कंपनीज बुरी हैं या वहां हमें काम नहीं करना चाहिए। स्टार्टिंग में हम सब लोगों को मौका नहीं मिलता कि हम मल्टीनेशनल कंपनी से अपना करियर शुरू करें। मुझे भी नहीं मिला, मैंने भी मुगल स्टील मिल्स में 5 साल रफ एंड टफ इन्वायरमेंट में काम किया है, अनपढ़ लोगों के साथ बात किया। मेरी टीम में 60 लोग थे, उनमें से 50 मैट्रिक भी नहीं थे, और उनको हैंडल करना और पढ़े लिखे लोगों को हैंडल करना एक मुश्किल और आसान काम होता है। सो ये सारे चैलेंजेस थे, बट उस प्रोसेस से गुजरने का जो मैंने उस वक्त प्राइस पे की, उसका रिवॉर्ड आज मुझे मिलता है। और हमेशा कभी भी रायगा नहीं जाती आपकी मेहनत। जब आप लोकल कंपनी में काम करें या किसी ऐसी जगह काम करें जहाँ फिजिकल मेहनत ज्यादा हो और मेंटल कम हो, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो, यहाँ प्रोडक्शन में बहुत प्रेशर होता है,
इतना ज्यादा, अगर क्योंकि आवरली प्रोडक्शन टारगेट्स होते हैं, सेल्स की तरह नहीं है कि ईयरली टारगेट है या वीक मंथली टारगेट्स है। तो 24 घंटे में आपने वो प्रोडक्शन टारगेट्स मीट करने होते हैं, बहुत प्रेशर होता है और उसको सस्टेन करना बड़ा मुश्किल काम होता है। सो वो करने का अल्टीमेटली आज फायदा हो रहा है और वो वैल्यू ऐड करती हैं चीजें से। दूसरा ये कि लोकल कंपनीज में दो तरह की चीजें होती है। एक तो ये कि आप छोटी कंपनी में जाते हैं तो वहां सीखने का ज्यादा मौका मिलता है, और बड़ी कंपनी जैसे लेट्स सपोज कोका कोला में आपका की जॉब हो जाती है एचईसी में या इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट में या इलेक्ट्रिकल में या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, तो जिस डोमेन में आपको वो लगाएंगे ना जॉब के लिए, वहीं पे वही एक चीज सीखेंगे आप। और शुरू में ये अच्छा भी होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, आप एक चीज को प्रॉपर तरीके से सीख जाते हैं। लेटर ऑन जब आप आगे जाते हैं, मैनेजर भी बन जाते हैं, तो भी एक ही डिसिप्लिन में आपको सीखने का मौका मिल जाता है। मैं इसको अगर अपने ऊपर अप्लाई करूं, तो जब मैं एसकेएफ में काम कर रहा था, स्वीडिश कंपनी में पाकिस्तान में, एज एप्लीकेशन इंजीनियरिंग स्पेशलिस्ट, तो मुझे कहा जाता था सिर्फ एप्लीकेशन इंजीनियरिंग को देखें, सेल्स को, मार्केटिंग को, डिस्ट्रीब्यूटर डेवलपमेंट को, इंपोर्ट्स को, एलसी, सप्लाई चेन के बारे में आपका कोई काम नहीं है उसके अंदर इन्वॉल्व होने का। तो मेरा दिल चाहता था कि मैं वो सीखूं ये काम, मुझे अगर ये स्किल नहीं मिलेगी सीखने को तो मैं ग्रो कैसे करूंगा। तो इसलिए जब मैंने आरकेबी को ज्वाइन किया, तो एज कंपेयर टू एसकेएफ, आरकेबी 10 टाइम्स छोटी कंपनी है। छोटी कंपनी में आपको बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए तो आपकी लर्निंग कर्व बहुत बड़ी हो जाती है। अब मुझे क्या मौका मिला, डिस्ट्रीब्यूटर डेवलपमेंट प्लस इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे सेल्स, उसके बाद सप्लाई चेन, एलसीज ओपन करना, शिपमेंट्स, इंपोर्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग। सो बेरिंग का कंप्लीट बिजनेस सीखने का मौका मिला। अगर मैं एसकेएफ में ही रहता तो आज भी ये लर्निंग कर्व मुझे वहां पे ना मिलती। तो ये डिपेंड करता है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं वो मल्टीनेशनल कल्चर में कंफर्टेबल नहीं होते या उसके साथ कॉप अप नहीं कर पाते, और बहुत सारे लोग लोकल इंडस्ट्री के कल्चर में सेट नहीं हो पाते। तो आपने डिसाइड करना है कि आप किस कल्चर में ज्यादा कंफर्टेबल हैं और अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन। सर, मेरा ये सेम क्वेश्चन का एक्सपीरियंस हुआ था माइक्रोसॉफ्ट के साथ एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। गुड। तो जी हाँ, तो उन्होंने मुझे इससे तकरीबन ये सेम क्वेश्चन पूछा था कि आप, तो उसमें मेरा सर ये आंसर इस तरह से मैंने उनको किया था कि मेरे पास स्किल्स हैं, आई लव टू कोड, ठीक है, इवन आई एम स्लीपिंग एट नाइट, ठीक है, मुझे कोई भी आइडिया मिलता है तो मैं उसको नोट करता हूँ, ठीक है, मैं इस तरफ से एनर्जेटिक हूँ कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। तो एज अ कैरियर अगर मैं इसको देखूँ तो मैं इस पे काफी वर्क कर रहा हूँ, इसको इम्प्रूव कर रहा हूँ अपनी स्किल्स को। दैट वाज द पॉइंट सर। गुड। इस सवाल की ना दो डायमेंशंस है। एक तो ये कि अगर आपने एचआर में एमबीए किया और जॉब मार्केटिंग किया ना, तो ये सवाल बहुत वैलिड हो जाता है एम्प्लॉयर का कि मैं आपको क्यों हायर करूं, मैं एचआर के अंदर या जो मुझे रिक्वायरमेंट है मैं उस कैंडिडेट को क्यों ना करूं, तो आपको जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप सेम क्वालिफिकेशन, सेम स्किल सेट, सेम एक्सपर्टीज लेके जा रहे हैं तो आपके लिए आसान हो जाता है इस सवाल को आंसर करना। जो जॉब रिक्वायरमेंट है उस पे क्वालिफाई कर रहे हैं, जो स्किल सेट उसके लिए चाहिए, लेट्स सपोज आप मैकेनिकल इंजीनियर के लिए जा रहे हैं, सो आपके पास ऑटोकैड की स्किल है, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की स्किल है, प्राइमवेरा है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कुछ सॉफ्टवेयर हैं, सो स्किल्स आपके पास हैं, एक्सपीरियंस नहीं है और एक्सपीरियंस मांगा भी नहीं है। सो आपसे जब ये सवाल पूछा जाएगा तो एडिशनली आपने क्या बातें करनी है ऐसी जो आपको आइडियल कैंडिडेट के तौर पे वहां पे प्रेजेंट करे। नंबर 1, उस जॉब से रेलेवेंट होनी चाहिए वो सारी बातें। ऐसा ना हो कि वो जो मैकेनिकल इंजीनियर की जॉब है और आप कह रहे हैं मुझे सोशल मीडिया हैंडल करना भी आता, तो ये इररेलेवेंट हो जाएगा। अब उससे रिलेटेड क्या चीजें हैं कि आपका इंटरेस्ट जो है उस फील्ड में शो होना चाहिए आपके पेरेंट्स से, आपकी बातों से। लेट्स सपोज ये सवाल का जवाब देना
मुश्किल हो जाता है अगर मैकेनिकल इंजीनियर की जॉब है और आप टाई कोट लगा के चले गए। सो अगर आप जीन्स एंड टी शर्ट में गए हैं तो आधा जवाब इसका जब ऑटोमेटिकली आंसर हो गया, बिकॉज आप जब बताएंगे कि सर मैं आई एम मोर इंटरेस्टेड इनटू वर्किंग इन दिस डोमेन, इन दिस कंपनी, इन दिस डिपार्टमेंट, बिकॉज ये मेरा इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट क्यों है आपका, आपको बताना पड़ेगा कि आपकी कंप्लीट एजुकेशन इसमें है, आपके जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज थी उसमें भी आप इसी डोमेन में इन्वॉल्व रहे, प्रोजेक्ट जो आपने किया फाइनल ईयर का वो भी इसी से रिलेटेड है और उसमें ये लर्निंग थी। सेकेंडली इंपॉर्टेंट चीज, अगर उस कंपनी के कल्चर और एनवायरनमेंट और वर्किंग कंडीशन के बारे में आपको ज्यादा पता है ना, तो आप आसानी से हैंडल कर लेंगे। मिसाल के तौर पे एक शख्स स्टील इंडस्ट्री में जॉब के लिए गया है, मैकेनिकल इंजीनियर के लिए, और उन्होंने पूछा कि व्हाई शुड वी टेक द रिस्क टू हायर यू, तो आप कहें सर स्टील इंडस्ट्री के बारे में कोई ऐसी मालूमात नहीं है जो मुझे पता ना हो, प्रोडक्शन से लेके तरीकेकार इसकी प्रोडक्शन का, ऑपरेशन का, हर चीज के ऊपर मेरी ग्रिप है, कौन काम करता है वहां पे, क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं। अगर ये मालूमात आपके पास है तो आपकी बातों को ज्यादा वेटेज दी जाएगी यहाँ पे, इससे आप इसका सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं, समझ रहे हैं। और अगर आपको पता ही नहीं है उस कंपनी का नाम, उसके चेयरमैन का नाम, उस कंपनी के अंदर मशीन कौन सी यूज हो रही है, तो फिर प्रॉब्लम होगा, फिर कैसे जस्टिफाई करेंगे आप। यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन आपकी जो है वो बेस करेगी आपका रिलेशनशिप उस जॉब ओपनिंग के साथ कैसे स्ट्रेंथन हो सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट्स Sir? इन इट। जी प्लीज। I have a question. जब आप अपना experience share कर रहे थे, you said that आप एक industry में काम कर रहे थे and there were some those people working under you, some were metric pass, some were पढ़े लिखे लोग, but the thing is they were not punctual. So my question is, how did you motivate them? How did you make them do the work when they did not want to do it? What were some techniques that you applied? टीम को अपने साथ इन्वॉल्व करना, ऑर्गेनाइज से, देखें सिर्फ पंक्चुअल होना नहीं है, गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड इज द बिगर पिक्चर। गेटिंग ऑर्गेनाइज मीन्स टाइम पे आना, काम सही करना, जिम्मेदारी लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अकाउंटेबिलिटी का भी फैक्टर उसमें आता है। सो ये डिपेंड करता है कंपनी के ओवरऑल कल्चर के ऊपर। स्टील इंडस्ट्री में एक वर्कर जो है वो सामने खड़े होकर आपको कह सकता है कि सर बाबूजी मैंने काम नहीं करना, मैं ये जा रहा हूँ, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। वो कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है कोका कोला से, पेप्सी से और ऐसे इदारों से जो बेशक लोकल सेटअप है लेकिन वो किसी ना किसी इंटरनेशनल चेन को रिप्रेजेंट करते हैं। वहां पे मालिक का अपना टाइम टेबल नहीं है। जो ओनर ऑफ द कंपनी है, चेयरमैन, वो दोपहर को कभी 12 बजे आएगा, कभी 2 बजे आएगा, शायद कभी ना आए, उसका कोई टाइम, और वो हो सकता है रात को 10 बजे तक बैठा हो और आपको भी बिठाया हुआ हो। वहां पूरे का पूरा इन्वायरमेंट ही खराब हुआ है। इस हिसाब से वहां पे लोगों को कल्चर्ड बनाना बहुत मुश्किल काम है। हाँ, जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, आप बीइंग प्रोफेशनल इंजीनियर, आप चाहे इंजीनियर हैं या इवन मैनेजर हैं वहां पे, तो आप उसको अगर फॉलो कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो आप एक एग्जाम्पल सेट करते जाएंगे फॉर अदर्स टू फॉलो। और अगर आप खुद नहीं कर रहे, दूसरों को कह रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। सो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि मैं खुद वो सारी चीजें करता जो मैं चाहता था दूसरे लोग करें। तो मैं अगर अनड्यू छुट्टियां नहीं कर रहा, टाइम पे आ रहा हूँ, तो इवेंचुअली लोगों को ये मैसेज आता है कि हमें भी ऐसा करना पड़ेगा या करना चाहिए, इसमें फायदा है सबका। तो अदरवाइज ये कि एचआर के साथ मिलके कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज के लिए पॉलिसीज बना के, डिपार्टमेंट लेवल पे अपनी मीटिंग्स करके सारे लोगों को, जिसको कहते हैं ना इनफॉर्मल ट्रेनिंग, लोगों को थोड़ा थोड़ा एहसास दिला के देखें इंपॉर्टेंट है, आप नहीं आएंगे तो दूसरा परेशान होगा, फिर वो ये करेगा तो आपकी शिफ्ट में प्रॉब्लम आएगा। तो उनको कंसिक्वेंसेस के साथ थोड़ा कन्फ्रंट करके इस तरीके से जितना जितना हो सकता था इंटरनली वो हमने किया। लेकिन इवेंचुअली उस इन्वायरमेंट में रहने का मतलब है यू आर गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर सोशल लाइफ एंड मैनी अदर प्रोफेशनल डेवलपमेंट एरियाज जो नहीं हो सकते। तो क्योंकि जो इंजीनियर्स का काम है वो वहाँ पे उनसे वो काम नहीं लेते, वो उनसे थोड़ा डिफरेंट किस्म का काम ले रहे होते हैं।
और मालिक खुद कभी इंजीनियर बने होते हैं, तो इसलिए इस इंडस्ट्री का थोड़ा सा ना डिफरेंट कल्चर है। उसमें जितनी कोशिश आप इंडिविजुअली कर सकते हैं, वरना सम टाइम एचआर और जो एडमिन का सिस्टम है वो भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा होता। 6 लोग हैं, उन्होंने एकदम स्ट्राइक कर दी, चले गए, तो क्या करेंगे आप? सो ऐसा भी टाइम आया कि हमें खुद वर्कर की जगह पे खड़े होकर काम करना पड़े। सो ये सब उस सिस्टम का हिस्सा है। बट अगर आप उस दो चीजें ना, या तो आप उस सिस्टम को सही कर लें या खुद स्पॉइल हो जाए। सबसे बड़ा जहाद ये है कि आप खुद स्पॉइल ना हो। आपको कल को किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए तो वहां जाके आपको मुश्किल ना हो उनके साथ कदम मिला के चलना, आप फौरन से अपने आप को इम्प्रूव कर लें। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो जब मुझे एसकेएफ में जॉब मिली तो सबसे पहले तो बाल काटने से लेके शेव बनाने से लेके कपड़ों के कलर, शूज की सारी डिटेल से गुजरना पड़ा कि कैसे इस इन्वायरमेंट में काम करना है। इंजीनियर्स इस चीज की परवाह बिल्कुल नहीं करते। और ऑफिस इन्वायरमेंट में, हेड ऑफिस में अगर आपकी जॉब है या अगर आपकी सेल्स कंपनी में जॉब है, तो सबसे पहली चीज ये होती है। इसके बगैर आपका अपीयरेंस अच्छा नहीं है, अटायर अच्छा नहीं है, तो आगे बढ़ना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर आई हैव अ क्वेश्चन कि आपने यस, कहा कि कंपनी के बारे में व्हेन यू आर अप्लाइंग समवेयर और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो यू शुड नो अबाउट दैट कंपनी बिफोर हैंड। बट एज एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट मैंने कई कंपनीज में अप्लाई किया, तो देयर वर फ्यू कंपनीज जिनका ऑफ कोर्स मतलब ऑनलाइन उनका जानना चाहा एंड आई वांटेड टू क्वेश्चन देम बिफोर हैंड। आई डोंट नो इफ दैट वाज अ राइट मूव और नॉट, बट few of them answered them those questions, but कुछ जो है वो offend हुए थे उन सवालों से कि why I was asking about that company, जबकि ऐसा कोई offensive सवाल नहीं था। I just wanted to know कि वो कंपनी क्या facilities provide कर रही हैं या क्या employee to company relation है उनका। तो is that right या should we ask them question interview के दौरान? it's an indirect message to you what sort of company we are. If they are being offended from by your questions, so it means कि आपको अंदाजा हो जाता है कि how professional they are. So ये भी एक आपने अच्छा किया, पूछ लिया questions, आपको आइडिया हो गया कि questions पूछने पे offend हो रहे हैं, तो वहाँ पे कितना ज्यादा फैमिली कल्चर है, यानी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है उसमें कितनी ओपननेस है, उसमें कितना अलाउ करते हैं क्वेश्चंस को। कल को जब आप हायर हो जाएंगे और आप पूछेंगे कि मुझे ये काम कैसे करना है, तो मे भी आपसे सेम तरीके से ऑफेंड हो जाएं कि ये क्या बात है, आपको खुद नहीं पता। ये सब चीजें इंडिकेशंस हैं उस कंपनी के कल्चर के बारे में। तो ये पूछना आपका ठीक है, आपको तो अच्छे इन्वायरमेंट में जाएंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से सीखेंगे और जल्दी ग्रो करेंगे ना। और अगर आप नहीं पूछते, जाके सिंपल ज्वाइन कर लेते हैं, 1 महीने बाद आप, ज्यादातर कैंडिडेट यही करते हैं, 1 हफ्ते बाद 1 महीने बाद रो रहे होते हैं, अपने कॉलीग्स को, अपने क्लासमेट्स को, अपनी फैमिली में कह रहे होते हैं ओहो गलत कंपनी ज्वाइन कर ली। क्यों गलत कंपनी ज्वाइन कर ली? पहले का चेक नहीं किया। जैसे एक कंपनी एक इंडिविजुअल कैंडिडेट को चेक करती है सोशल मीडिया पे जाके, उसकी साथ ईमेल में कम्युनिकेट करके, उसको फोन करके, उसको बुला के अपने ऑफिस, उसकी पूरी के पूरे डॉक्यूमेंट्स चेक करके, उसके साथ इंटरव्यू करके, उसके साइकोमेट्रिक असेसमेंट करके, और फिर वो डिसाइड करते हैं कि क्या ये कैंडिडेट इस काबिल है कि इसको हम ऐड करें अपने सोशल कल्चर के अंदर और ये वैल्यू ऐड करेगा, हमारे बाकी एम्प्लॉयज के लिए अच्छा साबित होगा। तो वो डिसाइड करते हैं हाँ या ना। ऐसे ही एक कैंडिडेट को भी चाहिए कि उस कंपनी का कंप्लीट असेसमेंट करे। इसमें लोग कौन, आप जब इंटरव्यू के एंड पे आपको कंपनी ने कहा ठीक है हम आपको ऑफर दे रहे हैं, वी हैव सिलेक्टेड यू, दैट इज द टाइम to start asking some questions from the immediate manager, HR manager or interviewer कि सर ठीक है, मुझे अच्छा लगा आपने मुझे सिलेक्ट किया, लेकिन मैं बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑफर आपसे कुछ बातें डिस्कस करना चाहती हूँ। कौन सा आप काम कर रहे थे इस पोजीशन से मुझसे पहले, क्यों छोड़ के गए कंपनी, सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस करना पड़ेगा मुझे अगर मैं ये ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लेती हूँ आपका। आप क्या समझते हैं कि कितने हफ्तों में मैं नॉर्मल वर्किंग रूटीन पे आ जाऊंगी जो मुझसे कंपनी एक्सपेक्ट करती है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आपको हेल्प करेंगे
कि जिसकी बुनियाद पे आप उस डिपार्टमेंट में जब ज्वाइन कर लें तो आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। ये आप उस कंपनी के खिलाफ नहीं जा रहे, आप उसको फेवर दे रहे हैं, आप प्रिपेयर हो रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि आप अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकें। उस कंपनी को ऑफेंड नहीं होना चाहिए। क्या ख्याल है सर आपका? जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन था बेसिकली कि सर मतलब जिस तरह डिफरेंट कंट्री इंडस्ट्रीज पाकिस्तान के अंदर मतलब लोकल इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा काम कर रही हैं, तो जैसा अगर आप एज अ लोकल इंडस्ट्री के अंदर एम्प्लॉय होते हो तो आप एक वक्त के ऊपर 2 से 3 मुख्तलिफ काम कर रहे होते हो, क्योंकि वो कॉस्ट कटिंग के अंदर काम करते हैं कि उनका ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंस जो है वो कम से कम हो। तो उसके अंदर अब अगर मतलब आपको एज अ मैनेजर हायर करते हैं तो उसके अंदर आपको मैनेजर के साथ साथ आपको मार्केटिंग के अंदर भी लेके जाते हैं, आपको मैनेजमेंट के अंदर भी लेके जाते हैं, आप एचआर के अंदर भी लेके जाते हैं, क्योंकि उनका एक सिस्टम मैनेज नहीं हुआ होता। तो सर उसके अंदर तो मतलब अलॉट ऑफ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं, मतलब आपको पूरी लेबर को भी हैंडल करना पड़ रहा होता है, मशीन्स को भी, मार्केट्स को भी। तो उसके अंदर आपको नहीं ख्याल कि मतलब इसके अंदर ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिलेगा? मतलब एक इंसान अगर इतना ज्यादा काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है एक्सपोजर तो होगा उसके लिए। आई एग्री, और यही मैंने शुरू में कहा कि छोटी लेकिन कंपनीज सर में सीखने के मौके ज्यादा होते हैं। लेकिन सर जब हम एज कम्पेयर टू उसको कन्वर्ट करते हैं कि किसी इंटरनेशनल फर्म के साथ, जिस तरह मतलब नेस्ले काम कर रही है या फिर एंग्रो वगैरह बड़ी लेवल के ऊपर इंडस्ट्रीज काम कर रही है पाकिस्तान के अंदर फर्म्स हैं, तो उसके अंदर अगर हम Yes, जाते हैं तो उसके अंदर आपको स्पेसिफिक ही काम करना पड़ रहा होता है। लेकिन अगर आप exactly. स्पेसिफिक काम करते हो तो उसके अंदर अगर आप मतलब एक इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हो मतलब ऑन 2 to 3 lakhs to pay an handsome amount of salary, but when you drop from that particular firm, but you need another job in the next firm, you cannot be offered from more than that, क्योंकि उनको पता होता है कि आप इतने का काम करते रहो, आप उसको उसी रेशो के मुताबिक ही आपको पे करते हैं, आपको उससे ज्यादा पे नहीं करते, क्योंकि आपकी स्किल्स उसी के मुताबिक रही होती हैं। तो ऐसे ही है। which you recommend that कि हम लोगों को इंटरनेशनल के अंदर मतलब स्टार्टिंग के अंदर इंटरनेशनल के ऊपर काम करना चाहिए कि मतलब ये लोकल इंडस्ट्री से हम लोग स्टार्टअप करें? डिफरेंट स्टेजेस होती हैं करियर की। सबसे पहली स्टेज है जब आप एंट्री लेवल पे ज्वाइन करते हैं। एंट्री लेवल पे अगर आपको मौका मिलता है छोटी इंडस्ट्री में काम करने का फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ज्यादा चीजें सीखने का मौका मिल जाता है कल्चर को, और आपको कल्चरल चैलेंजेस को जानने का मौका मिल जाता है। देन अगर आप मूव करते हैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में किसी एक डिसिप्लिन में, तो तब तक आपको ये पता चल चुका होता है कि ये डिपार्टमेंट मेरे लिए ये जॉब पोजीशन ठीक है या नहीं। सेकेंडली वहां जाके आप डेवलपमेंट सीखते हैं, कल्चर्ड हो जाते हैं, अच्छे तरीके से बात करना, काम करना, ऑर्गेनाइज होकर काम करना सीख लेते हैं। इसी तरह से शुरू में इंसान की कोशिश होती है ज्यादा से ज्यादा अर्निंग होनी चाहिए, जहां ज्यादा सैलरी मिले मुझे वहां काम करना चाहिए। मिड लेवल करियर पोजीशन पे जब आप पहुंचते हैं तो फिर आप कहते हैं नहीं, करियर में अर्निंग भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक ऑर्गेनाइज लाइफस्टाइल भी मुझे चाहिए जिसमें मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकूं, जिसमें मैं अपना काम भी एंजॉय कर सकूं, जिसमें मेरी सोशल लाइफ भी हो। एट द एंड ऑफ योर करियर आपकी टोटल रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती है। तो आपके शुरू के टाइम में डिपेंड करता है, अगर आपको नहीं पता कि आपको क्या जॉब करनी है और किस कंपनी में किस डिपार्टमेंट में करनी है, तो आपको अगर लोकल कंपनी में जॉब मिले करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीखें, मूव ऑन करें। ये याद रखें कि 3 साल एक कंपनी में काम करने के लिए एक आइडियल टाइम पीरियड है जिसमें आप उस कंपनी की मैक्सिमम चीजें सीख लेते हैं। मैक्सिमम चीजें सीखने का मतलब जो आपका काम है वो सीख लिया, जो नहीं आपका काम, जैसे आप अगर मैकेनिकल हैं तो इलेक्ट्रिकल की ओरिएंटेशन हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की ओरिएंटेशन हो जाती है, एडमिन एचआर की ओरिएंटेशन हो जाती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को आपने सीख लिया, वो आपका एक्सपीरियंस बन गया। 3 साल के अंदर, 3 साल के बाद अगर उस कंपनी में आप प्रमोट नहीं हो रहे, सीनियर पोजीशन पे जा रहे, जहां आपकी फाइनेंशियल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं हो रही, देन यू मस्ट थिंक अबाउट चेंजिंग द कंपनी। जब आप कंपनी चेंज करते हैं तो आप मल्टीपल चीजें सीखते हैं। एक, जॉब मार्केट के बारे में। दूसरा, कंपनी स्विच करेंगे तो अगली कंपनी के अंदर जॉब क्वालिफाई करने के लिए यू इम्प्रूव योरसेल्फ, और आपने जो काम किया होता है उस काम को बताना आ जाता है। हमें अपने सीवी में लिखना भी नहीं आता कि हमने क्या काम किया है और उस काम को रिप्रेजेंट कैसे करना है, उसको इंटरव्यू में बताना कैसे है। हम सिर्फ यही चाह रहे होते हैं कि हम बताएं जी हम यहाँ इतने 1000 रुपये लेते हैं और अब आपसे इतने 1000 रुपये लेंगे, मंजूर है तो बताएं। ये जो नेगोशिएशन स्किल है ये हमारी इंप्रूव हो जाती है अगर हम इसको सही तरीके से सीख लें। सेकेंडली,
जब नई कंपनी में जाते हैं तो नए लोगों में काम करने का मौका मिलता है, तो आप फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। जैसे आप डिफरेंट पर्सनालिटी के लोगों के साथ काम करना शुरू करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी लर्निंग होती है। डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट काम, डिफरेंट क्लाइंट्स, तो मल्टीपल ग्रोथ होती है आपकी, और आपको एकदम फाइनेंशियल ग्रोथ भी मिल जाती है। फिर जब आप 10 से 20 साल बाद आप ऐसी पोजीशन पे, हो सकता है 10 या 15 साल के अंदर ऐसे करियर के स्टेज पे आ जाएं कि वो साहब जो उसी कंपनी में लगे हुए हैं डे वन पे आपके साथ ज्वाइन किया था पहली कंपनी में, और आप में बहुत ज्यादा फर्क हो कल्चरल, फाइनेंशियल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट का। सो मेरा तो जो पास्ट में 20-21 साल में एक्सपीरियंस रहा है, मैंने डिफरेंट कंपनीज में काम किया और उसका फायदा हुआ, लेकिन मेरा जो एवरेज टेन्योर रहा है वो 3 साल से 5 साल का रहा है। तो मुगल स्टील मिल्स में 5 साल, तो विर्की स्टील मिल्स में 3 साल, एसकेएफ में 5 साल और आरकेबी में 3 साल। सो 3 साल के बाद मुझे फील होने लगता था कि अब मुझे इस कंपनी से आगे मूव ऑन करना चाहिए, बिकॉज मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ रुक गई है, मेरी प्रोफेशनल ग्रोथ रुक गई है, मेरी पर्सनल ग्रोथ रुक गई है। कंपनी में ना चेंजेस होती है, कभी बॉस चला जाता है, कभी सबॉर्डिनेट चला जाता है छोड़ के, कभी नया चेयरमैन आ जाता है, नया डायरेक्टर आ जाता है, वो नई पॉलिसीज ले आता है। सो आपने जो सीखना होता है एक सर्टेन डिपार्टमेंट में रहते हुए, वो 3 सालों में काफी हद तक सीख लेते हैं। तो अगर तो उसी कंपनी में आपको प्रमोट करके नई पोजीशन दे दी जाए तो ये तो आपके लिए अच्छा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आपको कंसिडर करना चाहिए नई जॉब। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन या हम कंटिन्यू करें? नेक्स्ट स्लाइड जो है ना, उस पे हमने लिखा है व्हाट्स इन इट फॉर मी एंड व्हाट्स इन इट फॉर यू, फॉर देम। जब आप इंटरव्यू में बैठे होते हैं तो 2 पार्टीज होती है, एक पार्टिसिपेंट और एक एम्प्लॉयर। आप दोनों ने ये देखना होता है कि दोनों को क्या मिल रहा है। उसको एज ए पार्टिसिपेंट आप क्या चीज दे रहे हैं, स्किल सेट दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, आप अपनी एक्सपर्टीज शेयर करेंगे, आप काम करेंगे, उस काम के बदले में उस कंपनी को फायदा होगा। वो आपको क्या पे करेंगे, करियर अपॉर्चुनिटी क्या है, पर्सनल डेवलपमेंट क्या होगी, प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या होगी, आपकी कम्यूट, आपकी सोशल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आएगा, आप एज ए प्रोफेशनल इस जॉब को करने के बाद आप कितना ग्रो करेंगे, ये सब चीजें देखनी होती है। एक दफा हम इंटरव्यू कर रहे थे मैनेजमेंट इंटर्नी के लिए, जिसका काम था मेनली ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को सेल करना। पंजाब यूनिवर्सिटी से हमने टॉप किया था, जिन्होंने अपनी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एमबीए में या ग्रेजुएशन में, उनको हमने सिलेक्ट किया इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू में एक कैंडिडेट ऐसी आई जिनसे हमने पूछा कि जी आपकी हमारी कंपनी से क्या एक्सपेक्टेशंस है। तो उन्होंने कहा कि सर पहली बात तो ये कि आप हमें सैलरी जो है ना कुछ 50,000 रुपीज दें। ठीक है जी, वेरी गुड। सेकंड हमने कहा कि अच्छा व्हाट्स अनदर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अस। तो उसने कहा कि सर पिक एंड ड्रॉप होनी चाहिए। ठीक है, मैंने कहा इसके अलावा क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी हमसे? उसने कहा कि ऑफिस एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, इसके अलावा? तो उन्होंने कहा कि आप हमें खाना दोपहर का जो है ना वो हमें आप प्रोवाइड करें। खाना प्रोवाइड करने की बात होगी तो हमने कहा इसके अलावा? तो उन्होंने कहा नहीं ये काफी है, इतनी चीजों से शुरू करते हैं। ठीक है, हमने कहा अच्छा ये तो वो सारी बातें होगी व्हाट्स इन इट फॉर योरसेल्फ, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट्स इन इट फॉर अस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है आपको, काम करना उस पर? उन्होंने कहा नहीं। ने कहा इलस्ट्रेटर पे काम करना आता है? नहीं। फोटोशॉप? नहीं। सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर? नहीं। तो हमने कहा फिर आप क्या लेके आएंगी, क्या वैल्यू ऐड करेंगी? तो उन्होंने कहा जो आप सिखाएंगे वो हम कर देंगे। तो इसका मतलब है कि उन्होंने सिर्फ ये सोचा कि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये नहीं सोचा कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में ये चीज को ध्यान में रखा करें और उसके अकॉर्डिंगली बात करें तो ज्यादा अच्छी नेगोशिएशन हो सकती है। सेकेंडली, इंटरव्यू में हम एक मिस्टेक करते हैं। एक साहब को मैंने रेकमेंड किया था एक जॉब के लिए, वो गए वहां पे, उन्होंने कहा जी मैं 50,000 रुपए से कम सैलरी नहीं लूंगा, आपने मुझे रखने तो रख लें वरना नहीं। वो पहले 20,000 रुपए सैलरी ले रहे थे, MBA थे, और 20,000 रुपए की तनख्वाह से 50,000। तो उन्होंने पूछा अभी आपकी सैलरी कितनी? कहते हैं 40,000। तो पहली बात उन्होंने झूठ बोला अपनी सैलरी के मामले में।
दूसरे नंबर पे वो जस्टिफाई नहीं कर पाए उनको कि 50,000 रुपये उनको क्यों दे। तो ये दो चीजों का ख्याल रखें, कभी भी ऐसा ना करें कि आप झूठ बोलें अपनी एग्जिस्टिंग सैलरी के बारे में, या अगर आपने कभी जॉब नहीं की तो आप मत बताएं कि आपने कोई जॉब की है। सेकेंडली, अगर आप 20,000 रुपये तनख्वाह पे काम कर रहे हैं और आगे आप चाहते हैं कि अगली कंपनी 50,000 रुपये आपको दे, तो बजाय झूठ बोलने के आप वो स्किल सेट्स और वो लर्निंग की लिस्ट उनके साथ शेयर करें और वो टारगेट्स उनके साथ शेयर करें जो वहां जाने के बाद उनकी कंपनी के लिए आप अचीव करेंगे, जिसकी बुनियाद पे वो आपको 50,000 क्या 60,000 रुपये तनख्वाह देने पे मजबूर हो जाएं, बजाय इसके कि आप झूठ बोल के उनसे कोई ऐसी बात करें कि जिसकी बुनियाद पे आपको एक्सपेक्ट आप करेंगे वो आपकी तनख्वाह बढ़ा देंगे। तो ऐसा नहीं होगा। बीइंग स्टूडेंट, आज आप स्टडीज कर रहे हैं अपनी यूएमटी में, आपने 60 डेज, जब आप लेट सपोज आज से 60 दिन बाद आपको जॉब चाहिए, तो आज से आपने वर्किंग शुरू करनी है इस प्लान पे जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है। सबसे पहले जॉब मार्केट को और करियर मार्केट को असेस करना शुरू करें। आप देखें कौन सी मार्केट में किस, जैसे मिसाल के तौर पे टेक्सटाइल पे बहुत बैड पैच चल रहा था, अभी कुछ अरसे से टेक्सटाइल इंडस्ट्री दोबारा बूम में आ गई। सीमेंट इंडस्ट्री अपनी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा प्रोडक्शन दे रही है। स्टील इंडस्ट्री में नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। आज से 10 साल पहले स्टील इंडस्ट्री बैठ रही थी, तो आज बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को के हाईलाइट होने से सीमेंट, स्टील और टेक्सटाइल बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही है। इसी तरह टेलीकम्युनिकेशन में चले जाएं, इसी तरह ऑटोमोटिव में अभी जैसे मे बी फ्यूचर में इलेक्ट्रिक कार की कंपनी राइवड में चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान लगा ले। तो ये सब चीजों की असेसमेंट करना शुरू करें। साइकोलॉजी में देखें कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में, किस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कौन से इदारे हायर कर रहे हैं जॉब के लिए, हॉस्पिटल्स में जाना चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाना चाहिए, या अपना बिजनेस की तरफ जाना चाहिए। फिर आप जिस कंपनी को सिलेक्ट करें, लेट सपोज आपने कोका कोला को सिलेक्ट किया कि इसके अलावा, ये नेस्ले के अलावा तो मैंने जॉब करनी नहीं कहीं, तो आप उस कंपनी का प्रोफाइल प्रिपेयर करें, उस कंपनी के बारे में जानना शुरू करें, मैक्सिमम मालूमात इकट्ठी करें और स्टडी करें, उसको डिस्कस करें। उस कंपनी में काम करने वाले लोगों को लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे फॉलो करें, ऐड करना शुरू करें, उनसे बातचीत करें, नेटवर्किंग शुरू करें। उनके अगर कोई क्लब्स हैं वो ज्वाइन कर ले, कहीं उनकी कोई गैदरिंग्स होती है किसी रेफरेंस के थ्रू, वहां पे चले जाएं, ताकि आप उस कंपनी को वाकई सही मानों में जान सकें। फिर उस कंपनी में जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है 40 दिन पहले, 20-60 दिन पहले उसके बारे में जानना शुरू करें। तो वो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, काम क्या करना पड़ता है, चैलेंजेस क्या होते हैं वहाँ पे, टाइमिंग क्या क्या इशू है, कम्यूट का कितना इशू है वहाँ पे, ये सब चीजें देख लें। फिर अपना पर्सनल प्रोफाइल एंड क्रेडेंशियल्स प्रिपेयर करना शुरू करें। जी मिस मानूर, यहाँ पे कुछ कहना चाहेंगे? यस सर, सेशन बहुत अच्छा गुजर रहा है अभी भी, बट स्टूडेंट्स आर लाइक, मुझे यहाँ कमेंट्स आ रहे हैं कि Q&A क्वेश्चन एंड आंसर इज इम्पोर्टेंट, बट काइंडली आस्क द पार्टिसिपेंट्स। अच्छा ठीक है, जो पार्टिसिपेंट्स अभी अनम्यूट कर रहे हैं माइक्स और पूछ रहे हैं क्वेश्चंस, नाउ आई वुड रिक्वेस्ट कि वो अब जितनी भी सर की जो प्रेजेंटेशन है वो खत्म हो लेने दें, उसके बाद we'll be open for the Q&A session. Thank you This so is the much. last slide. This is the last Okay. slide. उसके बाद let's Okay. be Then open we to are questions. अच्छा अच्छा सर, next part of our ये जो हमारा सेशन है, इसका नेक्स्ट पार्ट इज 30-second एलिवेटर पिच। तो इसके बारे में जरूर बताइएगा कि ये क्या होती है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, और इन 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर जब बच्चा बैठा होता है, कोई भी कैंडिडेट बैठा होता है एम्प्लॉयर के सामने, हाउ ही और शी शुड बी रिप्रेजेंटिंग इट। Right. So Perfect. that is very मतलब needed in the session. ठीक है। सो पर्सनल प्रोफाइल एंड क्रेडेंशियल्स में आप अपना रेज्यूमे बनाते हैं, कवर लेटर बनाते हैं। अगर आपने इंटर्नशिप की है तो जिस जगह काम किया अपने इमीडिएट मैनेजर को कहें आपके लिए एक टेस्टिमोनियल लिख के आपको दे दे, वो आप अपने सीवी के साथ अटैच कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप जिस कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ ईमेल करते हैं, अपना पोस्टल एड्रेस के थ्रू उसको कोरियर करते हैं सीवी, आप वहाँ खुद जाके ड्रॉप करते हैं और कंपनी से कांटेक्ट शुरू कर देते हैं ताकि जैसे ही अपॉर्चुनिटी आए आपको इंटरव्यू कॉल आ सके। and then आपका इंटरव्यू स्केड्यूल होता है, then you start preparing for that interview। और अभी हम प्रिपेयर कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए। तो 60 days अप्रोक्सीमेटली
मिनिमम 40 डेज एक रिसर्च के मुताबिक लग जाते हैं जब आप पहले दिन एप्लीकेशन भेजते हैं और पहला इंटरव्यू कॉल आती है। तो आप ये रफली ध्यान में रखें 40 to 60 डेज की प्रिपरेशन है फर्स्ट इंटरव्यू से पहले पहले। तो अब हम बात करते हैं आपके क्वेश्चंस की। जी पहला क्वेश्चन अब आप पूछें अभी से ऑनवर्ड, तो देन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट। There's one question ये मुझे अभी रिसीव हुआ है कि she's saying that I am MPhil English Literature student and an applied immigrant for USA. When I was in metric, I decided to be, I think we should come straight towards the question. अच्छा, वो कह रही हैं कि मैं एक इमिग्रेंट भी हूँ यूएसए की, मैंने इंग्लिश लिटरेचर में एमफिल किया है। When I was in metric, I decided to be a teacher of high school education, college or university. But people used to say that if I went to USA, there will be no career opportunity for me there. I'll be just a school teacher. There will be no worth of my MPhil degree. This statement creates extreme ambiguous situation for me to decide where I see myself after some years. सर वो इंग्लिश लिटरेचर की ग्रेजुएट है, एमफिल उन्होंने उसमें की है और साथ में इमिग्रेंट भी हैं यूएसए की। उनको लोग कह रहे हैं कि आपका वहां पे कोई करियर नहीं होगा, ठीक है, अगर आप यही कंटिन्यू करती हैं आप सिर्फ एक स्कूल टीचर ही बन के रह जाएंगी। तो सर व्हाट प्रेशियस एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू आवर स्टूडेंट हियर? देखिए इंग्लिश लिटरेचर आपने अपनी मर्जी से किया ना, किसी के कहने पे तो नहीं किया। और अगर इंग्लिश लिटरेचर किसी के कहने पे किया और अभी भी करियर चॉइस किसी के कहने पे करेंगे तो फिर तो फायदा नहीं है ना। तो आपने अगर खुद से चूज किया, आपको इस काम से इस प्रोफेशन से मोहब्बत है, आप इसके अंदर पैशनेट हैं, आप इसी के अंदर करियर बनाना चाहते हैं, तो फॉरगेट अबाउट एवरीबॉडी। जो भी कह रहे हैं उनको कहने दें, उनका तो यही काम है। आप ये देखें, आप एक लिस्ट बनाएं बजाय इसके कि आप लोगों का क्वेश्चन हमारे पास लेके आए। आप ये बताएं कि आप इस डोमेन में रहते हुए क्या काम कर सकते हैं, उसकी लिस्ट बनाएं। लेट्स सपोज बुक राइटिंग कर सकते हैं आप आर्टिकल लिख सकते हैं, आप इंग्लिश लिटरेचर के अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप एक इंस्टीट्यूशन अपना बना के रन कर सकते हैं यूएसए के अंदर, आप लोगों की इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव करने के कोर्सेज रन कर सकते हैं, आप एज ए प्रोफेशनल टीचर काम कर सकते हैं, आप किसी भी और डोमेन में, मिसाल के तौर पे एयरलाइन है, उनको अपनी मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव चाहिए जिसने एमफिल किया हो इंग्लिश लिटरेचर में, ताकि वो उसकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी हो कि वो एयरलाइन के बिहाफ पे डिफरेंट जगहों पे जाके बात कर सके, कॉन्फ्रेंसेस में बात कर सके। तो ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको मिलती हैं। होता क्या है कि ज्यादातर पाकिस्तान में इंग्लिश लिटरेचर में जिन्होंने पढ़ा है ना, उनको सिर्फ पाकिस्तान की हद तक टीचिंग की जॉब मिलती है, बिकॉज वो अपना अल्टीमेट पोटेंशियल एक्सप्लोर नहीं करते, वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं करते। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अभी साइकोलॉजी में जैसे मिस मानूर आप पढ़ रही हैं, तो साइकोलॉजी की जॉब्स होती हैं साइकोलॉजिस्ट के तौर पे हॉस्पिटल में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, या साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, जैसे लाहौर में मेंटल हॉस्पिटल है, वहाँ पे लोग काम करते हैं, ठीक है। उसमें साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट दो तरह की जॉब्स है, ऐसा ही है। लेकिन आपके सामने अभी पॉसिबिलिटीज में कैसर अब्बास होते हैं, वो भी साइकोलॉजिस्ट हैं, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट हैं, और वो पाकिस्तान के मशहूर तरीन ट्रेनर है। सो अगर वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके कुछ और कर सकते हैं, आप और मैं क्यों नहीं कर सकते। सो लोगों की बातों की जाने की बजाय थोड़ी सी मेहनत हम खुद करें अपने करियर की प्लानिंग के ऊपर, तो यकीन करें एमफिल इन इंग्लिश लिटरेचर ऐसी डिग्री बन जाएगा बाकी लोगों के लिए एग्जाम्पल के तौर पे कि सब कहेंगे यही करते। तो हुआ सर, अपनी पोटेंशियल को पहचानना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने में क्या पोटेंशियल है, अपने में क्या स्पार्क है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज वन मोर रेलेवेंट क्वेश्चन, वो ये है कि I have a question. Are metric, intermediate and university marks matter in do they matter in getting a job? हमारे marks जो है वो कितना important है इसके लिए? What would you say, sir? Again, coming back to that same point कि potential हमें कितना है, I think market में ये sell होता है। Yes. अब मार्क्स जो हमारे CGP है या जो हमारे मार्क्स ग्रेड्स हैं ना, ये इम्पोर्टेंट होते हैं ज़्यादातर हमें जब एडमिशन लेना होता है। जैसे मैट्रिक में
और फिर एफएससी में, और फिर अगर आप इंजीनियरिंग या मेडिकल में जाते हैं तो वहाँ पे इसके बगैर कोई तरीकाकार नहीं है कि यू कैन क्वालिफाई फॉर दैट। या इवन आप सीएसएस में जाते हैं तो कुछ जॉब रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जहाँ इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, बट बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जहाँ इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मिसाल के तौर पे सेल्स की जॉब्स हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, और इसी तरह से और ऐसी बहुत सारी जॉब्स हैं जैसे अकाउंटिंग वगैरह, फाइनेंस की जॉब्स में। तो ये डिपेंड करता है कि एक तो ये कि अगर आपके मार्क्स कम है तो इस वजह से डिसहार्ट ना हो आप उसको ना, वो एक मशहूर ट्रेनर हैं जिम रॉन, वो कहते हैं कि व्हाट यू लैक इन स्किल यू कैन मेक अप इन नंबर्स। तो अगर आप के पास एक चीज के मार्क्स कम है तो आप अपनी परफॉर्मेंस से उसको कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे शुरू से मैकेनिकल डिपार्टमेंट में इतना इंटरेस्ट नहीं था, सो मैंने क्या किया, मैंने मल्टीपल डिसिप्लिन्स को पढ़ना शुरू किया, सीखना शुरू किया, और आई ट्राइड टू फाइंड कि मेरा पैशन क्या है। सो मैंने इसी बिना पे साइकोलॉजी को पढ़ना शुरू किया, डॉक्टर एल्बर्ट एलिस, इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ये सब चीज़ें पढ़ते पढ़ते मेरा इसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और इतना इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि 150 साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट के पूल में मैं चला गया, और वहाँ बहुत सारे लोगों से नेटवर्किंग करते करते एक टाइम पे मुझे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की जो है, जहाँ मेरा एडमिशन एफएससी में रिजेक्ट हो गया था ड्यू टू मार्क्स ना होने की वजह से, उसी यूनिवर्सिटी ने मुझे गेस्ट स्पीकर के तौर पे बुलाया और कहा कि हमारी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट की स्टूडेंट्स एंड पीएचडी फैकल्टी को आप एक लेक्चर डिलीवर करें, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी डोमेन इंडस्ट्री के अंदर क्या है, बीइंग माय इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस मेरे पास था। सो ये कतन मैटर नहीं करता बहुत सारी जॉब्स में जहाँ पे आपके मार्क्स कम भी हों, आप उसको अपनी स्किल सेट से इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी एफर्ट एंड परफॉर्मेंस से इम्प्रूव कर सकते हैं। बट मैं ये हरगिज नहीं कहूँगा कि आप मार्क्स पे तवज्जो ना दें, मेहनत ना करें। सो मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे लोग एमबीए करते हैं, डिग्री लेते हैं, जाते हैं, डिग्री की बुनियाद पे प्रमोशन चाह रहे होते हैं, और बहुत सारे लोग बगैर डिग्री लिए भी एमबीए से बेहतर परफॉर्म कर रहे होते हैं, ज़्यादा पैसे कमा रहे होते हैं, ज़्यादा अच्छे पोजीशन पे काम कर रहे होते हैं। सो कोशिश करें प्रैक्टिकल लाइफ में स्किल सेट सीखने की, पर्सनल डेवलपमेंट की, बीइंग ऑर्गेनाइज्ड होने की, प्रोफेशनल डेवलपमेंट की, जितने ज़्यादा टूल्स एंड टेक्निक्स आप सीख सकें, जितना ज़्यादा अच्छी नेटवर्किंग कर सकें, जितनी अच्छी अपनी प्रोफेशनल। सर जी इसी में मैं आपसे कुछ चाहूंगी बताना कि हमारे स्टूडेंट्स को बताएं कि कौन सी स्किल, मतलब आजकल ये पेंडेमिक भी चल रहा है, इन दीस ट्राइंग टाइम्स, इन दिस लॉकडाउन, व्हाट आर द स्किल्स जो इजीली बच्चों को एक्सेसिबल हैं और वो सीखें, जरूर सीखें, जो मस्ट स्किल होनी चाहिए फॉर एवरी ग्रेजुएट। कोई ऐसी स्किल्स का बताएं सर कि कौन से बच्चों को ये सीखनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट हार्ड रिटन स्किल्स, कम्युनिकेशन, टेक्निकल स्किल। सबसे इम्पोर्टेंट रिटन कम्युनिकेशन। जितने भी स्टूडेंट्स हमसे कांटेक्ट करते हैं फॉर एनी रीजंस, वो प्रॉपर तरीके से ऐसे मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज और ईमेल नहीं लिख पाते। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, उर्दू में लिख रहे होते हैं या सही मानों में से लिख दिया अस्सलाम वालेकुम, और उसके बाद पता ही नहीं है। अब वो बंदा जवाब दे रहा है वालेकुम अस्सलाम, फिर कह रहे हैं हाउ आर यू, फिर अगले दिन वो बता रहा है आई एम फाइन। सो आपने किसी प्रोफेशनल से कांटेक्ट करना है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट मैसेज लिखें, प्रॉपर पैराग्राफ बना के, और उसको सेंड कर दें। जैसे ही वो आपका मैसेज पढ़े तो वो आपसे सवाल ना पूछे, उसमें कंप्लीट मालूमात दी होनी चाहिए। द सेम वे ये चीज क्या करेगी, आपको हेल्प करेगी, पहली जॉब पे जाते जो पहली ईमेल लिखनी होगी वो आप बेस्ट लिखेंगे, पहला लेटर अच्छा ड्राफ्ट करेंगे, पहला आर्टिकल अच्छा लिखेंगे, आपका फेसबुक प्रोफाइल अच्छा बना होगा, आपका आपका लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छा बना होगा, आपकी रेज्यूमे की समरी अच्छी बनी होगी। ये इसका सबसे मतलब है हमारे सब स्टूडेंट्स को अपनी रिटन और अपनी वर्बल इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड करनी चाहिए, अच्छी करनी चाहिए। रिटन सबसे पहले एंड सेकेंडली वर्क। ओके ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब सीवी भेजते हैं उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इतनी ज्यादा होती है, और उसकी बुनियाद पे हमें सीरियसनेस का आइडिया होता है। एग्जैक्टली, यस सर। और अगर किसी, और सिंपल बात पता है, अभी की इंटरव्यू में लोग आते हैं तो हम उनको कहते हैं कि आप एक सिंपल प्रपोजल बना दें कि हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, इसको अगर हम सेल बढ़ाना चाहें तो हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए, या हम कोई भी सिंपल एक लेटर ही लिखने का कह दें, लिटरली नहीं लिख पाते।
सो बाकी स्किल्स तो बहुत हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग हर एक को आनी चाहिए, बिकॉज वो अपने आप को एज एन इंजीनियर साइकोलॉजिस्ट प्रमोट कर सके। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे काम करना नहीं आता। हमारे कितने टीचर हैं या हम खुद भी प्रेजेंटेशन स्किल्स पढ़ाते हैं ना, प्रेजेंटेशन स्किल्स पे आपकी भी ट्रेनिंग्स होती होंगी ना यूनिवर्सिटी में लोग बच्चों की, यस स्टूडेंट्स सर, की। डेफिनेटली होती हैं। अभी तो इस करियर वीक में तो हमने यही स्टार्ट किया है। इवन थ्रू आउट दिस ईयर इनके थ्रू आउट द सेशंस ये ट्रेनिंग्स प्रेजेंटेशन की मैं इनके। मैं खुद भी ये पढ़ाता रहा हूँ ना प्रेजेंटेशन ओके स्किल्स, लेकिन ओके मुझे भी ये स्किल नहीं आती थी, टू बी ऑनेस्ट। इसलिए कि मैं उस स्किल को मानता हूँ, वो स्किल वाकई स्किल है आपकी, जो आपको पैसे कमा के दे रही हो। फॉर एग्जाम्पल आप उसको सेल कर सकें, लोग उस स्किल के लिए पे करने के रेडी हो आपके लिए। दैट इज द ओनली स्किल यू हैव असेस्ड, एक्वायर्ड, अदरवाइज नहीं। पता है मैंने क्या किया, 1 साल पहले लास्ट पेंडेमिक में फाइवर पे एक अकाउंट बनाया, उस पर लिखा आई विल क्रिएट पावर पॉइंट की नोट प्रेजेंटेशन फॉर योर सेल्फ। सो मुझे जब पहली प्रेजेंटेशन मिली तो मुझे पता चला कि मुझे तो प्रेजेंटेशन बनाना वाकई नहीं आता। और 3 महीने में मैंने उसको सीखना शुरू किया और मैंने करना शुरू किया, और रफली 6 महीने के अंदर मैंने 500,000 to 600,000 रुपीज अर्न किए प्रेजेंटेशंस बना के, विच इज नथिंग टू मी। बट वो जो स्किल मैंने सीख ली ना प्रेजेंटेशन बनाने की, वो मैं वैसे नहीं सीख सकता था किताबें पढ़ के या मैं ट्रेनिंग अटेंड करके। तो अगर स्टूडेंट कोई भी जो सुन रहे हैं चाहते हैं जो स्किल बनाना चाहे, अपनी स्किल एनहांस करना चाहें, तो वो फाइवर पे जाएं, वहाँ पे स्किल सेट्स की लिस्ट दी हुई है, वीडियोग्राफी से लेके प्रेजेंटेशन से लेके स्पीच से लेके ईच एंड एवरीथिंग, अकाउंटिंग एचआर की तमाम स्किल्स के नाम दिए हुए। उनमें से वो स्किल्स देखें जो उनके करियर से रिलेटेड है, डिग्री से रिलेटेड है, फ्यूचर जॉब से रिलेटेड है, उसको सीखना शुरू करें। और सेकेंडली वहाँ फाइवर पे अकाउंट बना के फ्री टाइम में वहाँ क्लाइंट से काम लेके बना के दें, ताकि बिफोर ज्वाइनिंग द जॉब आप स्किल्ड हो वो काम करने के लिए। Okay, sir. One more question. जी What to do if the interview board asks us to sell something instantly in 2 to 3 minutes? Sir, ये वही 30-second elevator pitch की बात आ गई है कि ये बताएं बच्चों को ये क्या होती है, और how to sell themselves into first 2-3 minutes. अटायर से लेकर उनके बोलने के स्टाइल से लेकर आप आगे स्किल तक 2-3 मिनट्स में 30 seconds से 2-3 minutes में how can they represent themselves in the best way? एलिवेटर पिच में सबसे पहली चीज जो नोट की जाती है वो होती है कि जब कोई अनएक्सपेक्टेडली ऐसी चीज किसी पार्टिसिपेंट को करने को कही जाती है, तो देखा जाता है वो कॉन्फिडेंस कैसे लूज करता है और वो कितना क्विकली गैदर करता है स्ट्रेंथ एंड स्टैंड्स अप एंड स्टार्ट टॉकिंग टू द ऑडियंस। कि जैसे अगर कहा जाता है कि सेल समथिंग, तो वो क्या इस पोजीशन में है, इज ही रेडी टू डू दैट, टेक दैट चैलेंज। और अगर वो कॉन्फिडेंटली खड़े होके बात करना शुरू कर देता है, चाहे वो गलत ही सेलिंग कर रहा हो, इसके अपने मार्क्स हैं, इसके अपने जो है ना वो उसकी वैल्यू है। सो इसलिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये एक तो प्रिपेयर होकर सर, जाए। अगर जेनेरिकली देखा जाए तो वो 2 से 3 मिनट में कोई भी बच्चा, अगर ऐसा कोई टास्क ना दिया जाए तो वो 2 से 3 मिनट में अपने आप को क्या क्या अपने बारे में बताए कि वो अगला जो है he or she would be giving another 10 minutes to listen to that candidate. इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे एक समरी लिखें 1 पेज 2 पेज 2 पैराग्राफ की 2 पैराग्राफ की समरी लिख लें पेपर पे अपने हाथ से, और उसको रिफाइन करें बार बार, और उसका कॉन्टेक्स्ट सही मानों में कंसेप्चुअलाइज कर ले। फॉर एग्जांपल मुझे अगर 10 जगह पे जाना पड़ता है और अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, तो जो इंट्रोडक्शन आपने पढ़ा पेपर पे वो मैंने कम से कम 50 टाइम्स लिखा और उसको एडिट किया और डिलीट किया, क्योंकि हर बदलते दिन के साथ चीजें ऐड और रिमूव हो जाती हैं। इसी तरह एक स्टूडेंट की पर्सनैलिटी में जो इंटरव्यू देने जा रहा है, पॉजिटिव चेंजेस एंड डेवलपमेंट्स हो रही है। होता क्या है कि हम प्रिपेयर इसलिए नहीं होते कि हमने कभी लिखा नहीं होता अपना इंट्रोडक्शन, और हम क्या कर सकते हैं, हम क्यों इस जॉब के लिए आए हैं, हमें क्या स्ट्रेंथ है, हमारी क्या वीकनेसेस हैं। सो हम उसको जब बोलने लगते हैं तो 1 मिनट के अंदर ही हमारे पास अल्फाज की वोकैबुलरी खत्म हो जाती है। सो अगर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और तो इम्प्रूव होगा ये, और फिर हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सेकेंडली, अपने बारे में बताने का मतलब है नंबर 1 ब्रीफली एजुकेशन, नंबर 2 आपकी स्किल सेट्स, नंबर 3 आपकी इंटरेस्ट, नंबर 4 आपके पैशंस, नंबर 5 उस जॉब से रिलेटेड चीजें
जो आप कर सकते हैं। यानी एक एक लाइन इन सब चीजों की अगर आप बड़े अच्छे तरीके से पोलाइटली स्लोली बोलना शुरू करें, कॉन्फिडेंटली आई कांटेक्ट मेंटेन करके इंटरव्यू के साथ खड़े होके अपने हाथों की बॉडी लैंग्वेज के साथ, सो ये मैसेज आता है कि ही इज कॉन्फिडेंट, ही नोज हाउ टू स्पीक, ही नोज व्हाट टू स्पीक, ही नो हाउ टू एड्रेस द क्वेश्चंस। दैट इज इनफ फॉर योर क्वालिफिकेशन कि आप उस इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर लें। सर वन मोर क्वेश्चन। Yes. एक ये हमारे पास स्टूडेंट है, ये कह रही हैं कि उन्होंने रिसेंटली इंटरव्यू दिया है ग्राफिक डिजाइनर के लिए, बट उन्होंने जो जॉब दी है उनको वो बेसिकली फ्रंट डेस्क की पोस्ट की जॉब दे दी है। ठीक है, नाउ शी सेइंग कि ग्राफिक डिजाइनर में मुझे वो सैलरी 5000 देंगे और फ्रंट डेस्क के लिए वो 30,000 पे करेंगे मुझे, तो व्हाट शुड बी द व्हाट शी शुड डू? इसका आंसर आपने वैसे प्रेजेंटेशन में तो अपनी बताया है, बट अगेन फॉर द स्टूडेंट्स से कि क्या व्हाट शुड बी द आइडियल सिचुएशन? डिपेंड करता है कि वो कितनी कंफर्टेबल है इन दोनों चीजों को एक साथ करने में। अगर शी इज कंफर्टेबल और उनको अच्छे पैसे मिल रहे हैं तो उनको डबल एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, और उस कंपनी के काम को समझने और करने के लिए उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मे बी आफ्टर 3 मंथ्स वो उनको ये फ्रंट डेस्क की जॉब छोड़ के तो थोड़ी सीनियर लेवल की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, सो उनको करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अगर वो अनकंफर्टेबल है, वो सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग में काम करना चाहती हैं और उनको एडमिन का काम करने में फ्रंट डेस्क का कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर उनको नहीं करनी चाहिए। ये प्योरली डिसीजन है उनका अपना, बट दोनों सूरतों में उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, another question sir, may I please know how do we find what's best for us, what job will do good to us, and what should we opt for out of lots of options? बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है और बड़ा मुश्किल टास्क है ये। इसका जवाब एक साथ नहीं दिया जा सकता क्योंकि हर इंसान डिफरेंट है, उसकी सोच, उसकी सब चीजें डिफरेंट हैं। सो मेरा तो एग्जैक्टली मेरा पर्सनल मशवरा ये है कि हमें डिफरेंट चीजें ट्राई करनी चाहिए, तब हम ज्यादा अच्छे तरीके से डिसाइड कर सकते हैं कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या हमारे लिए अच्छा नहीं है। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो काउंसलिंग सेशंस लेने चाहिए मल्टीपल टाइम। सेकेंडली, नेटवर्किंग करनी चाहिए मल्टीपल डिसिप्लिन के लोगों के साथ। फिर उसके बाद हमें पार्ट टाइम कुछ काम करने चाहिए जिससे हमें आइडिया हो कि ये काम हमारे लिए ठीक है या नहीं। सेकेंडली, हमें पहले नंबर पे ट्राई करना चाहिए जो एजुकेशन है उससे रिलेटेड डिसिप्लिन में जॉब करके, कि जिसके लिए इतनी मेहनत की है क्या वो रेलेवेंट चीज़ हमारे लिए, हमारी पर्सनालिटी के साथ जाती है, हमारे इंटरेस्ट के साथ जाती है, पैशन के साथ जाती है या नहीं। तो इस तरीके से मल्टीपल चीज़ों को ट्राई करने से, सेशंस लेने से और नेटवर्किंग करके डिफरेंट लोगों से मिल के डिस्कशन करने से ही हमें, लेट्स सपोज मुझे फिल्मों में देख के अगर शौक हो जाए पुलिस में जाने का, तो मुझे एक चक्कर थाने का जरूर लगाना चाहिए ना कि मैं ASI यहाँ इंस्पेक्टर के लिए एप्लीकेशन देने से पहले एक दफ़ा किसी पुलिस स्टेशन में चला जाऊँ या किसी पुलिस मैन से मिल लूँ, उसकी हालत देख के, वहाँ पे हालात, माहौल, कल्चर देख के मुझे खुद ही अंदाजा हो जाएगा एम आई मेड फॉर दिस जॉब और नॉट। क्या ख्याल है? तो ये ज़्यादा बेहतर और आसान तरीका है बजाय हिट एंड ट्रायल करने से। Any other question? Yes sir, there's one more question. बहुत सारे questions आ रहे हैं हमारे पास माशाल्लाह। Sir, एक और ये question है, a recruiter has 30 to 40 seconds for reviewing a person's CV. Which is best to submit? Resume या CV? दोनों में क्या फर्क है? ये तो अब यही बताएंगे जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है सर कि रिक्रूटर के पास 30 से 40 सेकंड्स होते हैं टू रिव्यू अ पर्सन CV, तो आप क्या बताते हैं कि CV के अंदर ऐसा क्या चीज, आई कैचिंग चीज होनी चाहिए जो सिलेक्ट हो जाए उसकी CV? हाँ, कल हमने एक CV का सैंपल शेयर किया था, दोबारा आप बताएं तो मैं दोबारा कर देता हूँ, दोबारा शेयर कर देता हूँ। उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो बता देते हैं। Okay sir, meanwhile I'll ask another question. Yes.
what if I want to start my own business? Is it mandatory that must have experience in relative field by doing job? My question is that if I want to start my own business, तो ये mandatory है कि मेरा experience भी उससे relevant job में होना चाहिए जो मैं business start करना चाहता हूँ? मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अच्छा है अगर एक्सपीरियंस हो जाए, और अगर नहीं भी है तो जब आप शुरू करते हैं काम तो इवेंचुअली यू स्टार्ट लर्निंग अबाउट दैट जॉब या अबाउट दैट बिजनेस. सो लेकिन अगर बिजनेस के बारे में जिनका एक्सपीरियंस नहीं होता उनको ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है. यहाँ तो ये होता है कि उस बिजनेस से रिलेटेड किसी का एक्सपीरियंस उसको आप हायर कर लें साथ, तो आपका सफ़र आसान हो जाता है, आपकी काफ़ी कॉस्ट एंड टाइम बच जाता है. तो ये दो ही तरीक़ेकार हैं जिसकी मदद से आप अपना बिजनेस जो है उसको जल्दी फ्लरिश कर सकते हैं. बिकॉज टाइम की कॉस्ट है, और वो अगर कंप्रोमाइज़ करेंगे, खुद सीखेंगे बिजनेस में, तो आप गलती कर सकते हैं. गलती करेंगे तो लॉस बहुत ज़्यादा होगा. सो बेहतर है जॉब एक्सपीरियंस ले लें, लेकिन अगर आपके बिजनेस जैसे आईटी से रिलेटेड है, मे बी उसमें कम रिक्वायरमेंट है ऐसी. अगर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है तो थोड़ी ज़्यादा है, अगर सेल्स से रिलेटेड है तो काफ़ी ज़्यादा है. सो डिपेंड करता है बिजनेस क्या है, उसमें कितनी ज़्यादा नीड है उस एक्सपीरियंस लेने की स्टार्ट करने से पहले. दोनों सूरतों में करना चाहिए, नो प्रॉब्लम, और करके देखें जहाँ प्रॉब्लम आए और आहिस्ते आहिस्ते आप सीख जाते हैं. सो ये सीवी मैंने आपके सामने ओपन किया है. इसमें अगर आप देखें तो ये जो टॉप पे इंफॉर्मेशन लिखी है, नीट एंड क्लीन, वेरी ब्रीफली, इसके अंदर हर वो चीज़ का जवाब है जो जो सीवी या रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करने वाले शख्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है. जॉब पोस्ट में आया कि हमें लेट सपोज कंट्री डायरेक्टर चाहिए या कंट्री मैनेजर चाहिए. सो करंट पोर्टफोलियो कंट्री मैनेजर लिखा हुआ है. बेसिक क्वालिफिकेशन एमबीए होनी चाहिए, एमबीए लिखा हुआ है, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड एमबीए होना चाहिए, दोनों चीज़ें आ गई. लाहौर बेस्ड जॉब है, लाहौर का शख्स चाहिए, लाहौर का एप्लीकेशन, लाहौर का एड्रेस आ गया. यहाँ पे बेसिक क्राइटेरिया क्वालिफाई कर लिया आपने कि आपका सीवी यस और नो में यस में चला जाए. सो अब क्या होगा, आपको कांटेक्ट करेंगे तो पेज के टॉप पे ही आपका फ़ोन नंबर मिल गया, पेज के टॉप पे ही आपकी ईमेल एड्रेस मिल गई. सो जब प्रिंट आउट लेके वो शॉर्टलिस्ट करेंगे तो इस टॉप पे जो इंफॉर्मेशन है ये इम्पॉर्टेंट है आपका सीवी फिल्टर होने में. फर्दर ये जो करियर समरी है, अगर इसके अंदर मैक्सिमम मालूमात आप दे दें, स्टार्टिंग विद योर एजुकेशन, देन योर इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, एंड देन योर स्किल सेट्स, और फिर थोड़ा सा पर्सनालिटी के बारे में आप अगर बात करें तो आपका ये एरिया स्ट्रॉन्ग एरिया होगा आपके सीवी को फिल्टर करने में हेल्प करने. ठीक है, कल इस पे बाकी एरियाज पे तफसील से बात हुई थी. सो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो सीवी में लिखना बहुत जरूरी है. Okay, thank you so much, sir. There's one more question. My question is what to expect after a fresh graduation? If one don't have any good skill to sell but dedicated to work for the company, तो क्या करना चाहिए? तो इसका सर आप पहले तो स्किल का बताएं कि स्किल होना कितना ज़रूरी है और होनी चाहिए भी. ठीक है, एंड देन व्हाट टू एक्सपेक्ट आफ्टर फ्रेश ग्रेजुएट को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए अपनी ग्रेजुएशन के बाद? नंबर 1 तो ये कि जॉब एम्प्लॉयमेंट उसकी हो जाए, सबसे पहले एक्सपेक्टेशन यही होती है. और सेकेंडली कि अच्छा बॉस मिल जाना बहुत अच्छी बात है. बिकॉज अगर मुझे एसकेएफ में अच्छा बॉस ना मिला होता, मेरी जो पहले 2 साल में ग्रोथ हुई थी वो शायद ना हो पाती, और मेरी करियर में डेवलपमेंट इतनी ना हो पाती. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जब हायर होते हैं तो आपका इमीडिएट मैनेजर या बॉस कौन है, और उस जॉब में आप क्या सीखेंगे. फॉर एग्जांपल, अगर किसी को ट्रैफिक पुलिस में जॉब मिल जाती है इसलिए कि आज वो अच्छा पैकेज दे रहे हैं और बाकी जॉब्स की पैकेज कम है, तो वो क्या सीखेगा. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. सारा दिन सड़क पे खड़े होके ट्रैफिक को गाइड कर रहा है, उसके अंदर कौन सी स्किल है ऐसी जो कल इंडस्ट्री में उसके काम आएगी. तो इसका मतलब वो फिर अब पूरी जिंदगी के लिए अपने आप को डेडिकेट कर देगा ट्रैफिक पुलिस की तरह की जॉब्स के लिए. लेकिन उसके बदले में एक इंजीनियर या एक एमबीए, क्योंकि मेरे साथ कुछ इंजीनियर से आज से 20 साल पहले वो ट्रैफिक वार्डन बन गए, तो वो बेचारे आज परेशान होते हैं. क्यों? कहते हैं ये तनख्वाह तो मिल रही है, इंस्पेक्टर बन गए हुए हैं आप, लेकिन सीखा कुछ नहीं है.
सो आपने ये डिसाइड करना होता है कि जब आप पहली जॉब पे जाएंगे तो क्या सीखेंगे, और उस सीखने की बुनियाद पे देखिए एक बहुत इम्पोर्टेंट कोटेशन है, कहते हैं कि इट्स not important what you get at your job, it's more important that what you become at your job. So after 5 years what will you become by doing that job, ये बहुत So important है. there's another question. Yeah, When a company asks, tell us about yourself, how should a person answer when he or she just got fresh out of university and has no achievements whatsoever, but has said set of skills he or she applying for? How should we introduce our personality? देखिए जरा सा मैं ऐड करूंगी कि जब आप यूनिवर्सिटी से निकले हैं तो डोंट से कि आपके पास कोई अचीवमेंट नहीं है. दैट्स इटसेल्फ अ बिग अचीवमेंट कि आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं और आपके पास स्किल्स जरूर होते हैं कोई ना कोई. आप अपनी कम्युनिकेशन को अपनी स्किल बना सकते हैं. सर बताइएगा इसके बारे में. दे सब कुछ यहाँ पर बच्चे हैं जो कि ग्रेजुएशन के बाद दे आर वेरी यू कैन से लो ऑन सेल्फ एस्टीम. तो हाउ शुड दे कीप देयर सेल्फ एस्टीम बूस्टेड और लोगों की बातों पर उनको ना इतना हो, लेकिन ये है कि उनको ये पता हो कि अगर वो यूनिवर्सिटी से निकले हैं तो वो एक एक they are an asset for the country, for this for being for the city. एग्जैक्टली पहले तो आपने अच्छा एड्रेस किया इस बात को कि ऐसा नहीं है कि उनके पास कुछ है नहीं. जो बेसिकली जो सीखने यूनिवर्सिटी गए हैं, क्या वो सीखा, क्या वो स्किल सेट या वो एजुकेशन या वो नॉलेज या इंफॉर्मेशन, वो डिग्री उन्होंने कंप्लीट की और क्वालिफाई कर लिया. और सर अचीवमेंट्स में बेसिकली उनकी सबसे पहले तो इंटर्नशिप्स आ जाती हैं, राइट? क्या आप 1 से 2, 2 से 3 आप इंटर्नशिप्स करें अपने. जैसे ही आपका 5th सेमेस्टर एंड होता है, 6th सेमेस्टर एंड होता है, स्टार्ट विद योर इंटर्नशिप्स. दैट्स योर अचीवमेंट. एग्जैक्टली. सो पहले नंबर पे तो आप अपनी बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताएं, फिर उसके बाद अपनी स्किल सेट्स के बारे में बताएं, फिर पर्सनालिटी के बारे में बताएं. और पर्सनालिटी के बारे में सिर्फ वो चीजें हाईलाइट करें जो उस इंटरव्यूअर के लिए इम्पोर्टेंट है, उस जॉब से रिलेटेड है. वो बातें अगर आप ऐड करें. वालेकुम अस्सलाम जी. सर वो that was my question. I am Zaman Alish from UMT, currently doing 8th semester mechanical engineering. Very good. And सर क्वेश्चन मेरा ये था कि एक रिक्रूटर के पास 30 से 40 सेकंड ज्यादा से ज्यादा होते हैं कि वो किसी सीवी को रिव्यू कर सके. तो सीवी और रिज्यूमे बेसिकली 1 पेज और फुल, जैसे भी आपने दिखाई कि आपकी एक फुल फ्लैश सीवी है, उसमें काफी ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस हैं, तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सब चीजें पढ़े. तो क्या हमें सीवी सबमिट करवानी चाहिए या रिज्यूमे सबमिट करवाना चाहिए? दोनों में क्या फर्क है बाय द वे? सर सीवी बल्कि फुल फ्लैश होती है, उसमें डिटेल प्रॉपर लिखी होती है, वो 3 to 4 पेजेस की होती है, जहां पे रिज्यूमे है वो सिंपल 1 पेज का होता है. आप अपना सीवी बनाएंगे और आप अपना रेज्यूमे बनाएंगे तो क्या एक 3 to 4 पेजेस का होगा और एक 1 पेज का होगा एज ए फ्रेश ग्रेजुएट? 3 to 4 पेजेस में क्या लिखेंगे आप? क्या लिखेंगे? वो 2 नहीं, एक्चुअली देखें, फ्रेश ग्रेजुएट्स का सीवी और रेज्यूमे दोनों 1 पेज से ज्यादा नहीं हो सकते. क्या मेंशन करेंगे? अदरवाइज स्पेस छोड़ देंगे बीच में, आप जैसे ऊपर टॉप पे नाम लिख दें और सेंटर में कुछ और. इसलिए आपका सीवी जो है फ्रेश ग्रेजुएट का, वो कभी भी 1 पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए. ब्रीफ होना चाहिए और फॉर्मेटेड होना चाहिए प्रॉपर्ली, ताकि क्रिस्प जितनी मैक्सिमम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो उसके अंदर मेंशन हो, कुछ भी एक्स्ट्रा ना हो, ताकि आपका जो फिल्टर करने वाला शख्स है सीवी, उसको सहूलत हो आपका सीवी फिल्टर करने में, उसको ये प्रॉब्लमेटिक ना लगे. सेकेंडली, जब 20 साल बाद आप अप्लाई करेंगे किसी जॉब के लिए तो आपका कभी भी सीवी 1 पेज का नहीं होगा. इवेंचुअली वो 3-4 पेजेस 6 पेजेस पे भी जा सकता है. उस टाइम पे अगर आप ज्यादा मालूमात नहीं सीवी में लिखेंगे तो वो सोचेंगे 20 साल में कुछ भी नहीं किया, और वो आपकी एक चीज को पढ़ते हैं. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी का सीवी डायरेक्टर, जीएम, कंट्री हेड या सीईओ के लिए अप्लाई करे और उसका सीवी वो 40 सेकंड में रीड कर ले. 40 सेकंड में सीवी जो बकौल आपके जो एक मशहूर बात है कि जी 40 सेकंड में एक रिक्रूटर सीवी रीड कर लेता है,
वो सिर्फ 1 पेजर फ्रेश ग्रेजुएट का सीवी होता है, जिसमें क्या देखना होता है, बेसिक मालूमात, एजुकेशन है उसके पास, ये उसकी करियर समरी को सिर्फ एक लाइन में देखें तो पता चल जाता है ये गूगल से कॉपी पेस्ट की हुई है या खुद लिखी हुई, कस्टमाइज्ड है, पर्सनलाइज्ड है या कॉपी पेस्ट है, ये तो आराम से पता चल जाता है ना। तो ये 40 सेकंड होते हैं जो एक फ्रेश ग्रेजुएट का 1 पेज का सीवी एक फिल्टर करने के लिए हाफ मिनट या 1 मिनट में देख रिव्यू कर लेते हैं। उसमें कोशिश जी जी सर, बताइए। सॉरी टू इंटरप्ट सर। तो मेरे अगर ख्याल आप से आप अपना 1 पेज का सीवी बनाएं, उसके अंदर मैक्सिमम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मेंशन करें और उस 1 पेज के अंदर खाली स्पेसेस नहीं होनी चाहिए, उसको फुली फिल्ड प्रॉपर तरीके से उस स्पेस को यूटिलाइज करके, और अगर आप 2 पेजेस पे जाते हैं तो सर्टेन रीजंस होनी चाहिए, ऐसा कंटेंट, ऐसा डाटा, ऐसी इंटर्नशिप, ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसी क्वालिफिकेशन, ऐसी आपकी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, सर्टिफिकेशंस हैं, वो अगर उसमें आप लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वरना नॉर्मली 2 पेजेस पे सीवी बनाने में आपको प्रॉब्लम होगी। We are very less on time and more and more questions are coming in. What kind of job can we do after IT? What kind of job we can do after IT? IT means? Sir, information technology, IT, information technology. What kind of job can we do after ADP IT? Advanced diploma in IT के बाद हम कौन सी this is question from Hamza Ali. तो IT में जो भी मेन डिसिप्लिन आप फॉलो करते हैं, जैसे फ्रंट एंड डेवलपर है, बैक एंड डेवलपर है, ऐप डेवलपर है, फिर इसी तरह से IT से रिलेटेड जो चीजें आपने उस डिप्लोमा में पढ़ी हैं, उससे रिलेटेड जॉब्स आती है ना। IT की तो इतनी ज्यादा जॉब्स हैं और हर एक डिसिप्लिन के अंदर सब डिसिप्लिन उसकी जॉब है। अभी हमजा अगर सुन रहे हैं तो अगर वो आ जाएं अनम्यूट करके थोड़ी सी डिटेल बता दें ताकि थोड़ा इस बात को हम डिस्कस कर लें। हमजा ने क्या are you there? Hamza Ali, are you there? ओके, सो IT में मल्टीपल जॉब्स हैं, घर बैठ के काम करना चाहें फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, इसी तरह से सॉफ्टवेयर हाउसेस ज्वाइन कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपर की अलग जॉब होती है, बैक एंड डेवलपर की अलग जॉब होती है, और इसमें जैसे मतलब मल्टीपल जॉब्स हैं, लेकिन वो फ्रंट एंड डेवलपर की जॉब तो तभी करेंगे ना जब उनका उसमें इंटरेस्ट होगा या उसके अंदर कोई उन्होंने उसकी स्किल सीखी होगी या कोई कोर्स किया होगा या डिप्लोमा किया होगा। तो ये डिपेंड करता है इन पे, लेकिन जॉब्स तो मतलब अपॉर्चुनिटीज तो बहुत हैं इसमें। यस, एनी अदर क्वेश्चन? Correct, thank you so much sir. There's what are your weaknesses? Amain Abuzar, what are your weaknesses? How is the best way to answer that? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जब आपसे पूछा जाता है कि आपकी वीकनेस क्या, और आप कहते हैं कि ऐसी वीकनेसेस बताना शुरू हो जाते हैं, वीकनेसेस तो सब में होती हैं जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करें आपकी जॉब परफॉर्मेंस पे, तो आपकी हायरिंग पे क्वेश्चन मार्क है। लेट्स सपोज आपकी टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट, और आप कहते हैं टाइम मैनेजमेंट मेरी वीक है, जो कि आप 1 हफ्ते में सही कर सकते हैं, सीख सकते हैं जॉब ज्वाइनिंग के बाद भी, तो इसका मतलब आपने खुद ही जो है ना अपना नुकसान कर लिया। आप इस बात को ये अच्छे तरीके से करने का ये कि सर एक्चुअली आई एम अ परफेक्शनिस्ट, तो मैं ज्यादा परफेक्शनिस्ट के तौर पे काम करने की कोशिश करता हूँ, तो थोड़ा सम टाइम असाइनमेंट्स डिले हो जाती है। तो इसका मतलब आपने अपनी वीकनेस भी बयान कर दी और आपने उसको पॉजिटिव नोट पे जो है वो एक्सप्लेन किया। तो आपके एम्प्लॉयर को ये डिसाइड करने में प्रॉब्लम होगी कि परफेक्शनिस्ट अब मुझे चाहिए या जल्दी जल्दी काम करने वाला शख्स चाहिए, तो डेफिनेटली वो आपको प्रेफरेंस देगा। तो अपनी प्रॉब्लम ये है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज याद रखें, ये वीकनेस को आंसर कैसे करना है, स्ट्रेंथ को आंसर कैसे करना है, इसी तरह से अपना 30 सेकंड पिच कैसे आपने बनानी है। जब तक बना के पेपर पे ला के रिहर्स नहीं करेंगे, इंटरव्यू में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमें ये बहुत जरूरी है हम इसको लिखें पेपर पे, फिर डिलीट करें, फिर लिखें, फिर बनाएं, फिर इसको अच्छा एक और चीज करें, अपनी पर्सनल पिच बना के रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड कर दें।
और सारे अपने क्लासमेट्स को कहीं कमेंट करके बताएं क्या वीकनेस है वो है, और फिर नेक्स्ट लेवल पे फिर दोबारा रिकॉर्ड करें, फिर उसके बाद रिकॉर्ड करें। हो सकता है आपकी वही पर्सनल पिच की प्रिपरेशन ही किसी एम्प्लॉयर को पसंद आ जाए और आपको जॉब पे बुला ले। कितना सीरियस शख्स। सो इसलिए So there's one more question. The question is, I want to ask about the first impression of confidence and the gap of experience in CV, how to cope up with that. After university life, basically we face challenges in our society. The people ask about how so वही just यही है इसकी कि पहला impression confidence का क्या होना चाहिए और जो गैप गैप को आ जाए कैसे, अगर कैसे कोप अप करें। कॉन्फिडेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी वर्बल कम्युनिकेशन दोनों को मैच करना चाहिए, दोनों को मैच करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि हम वेरी कॉन्फिडेंट, लेकिन हाथ शिवर कर रहे हैं, बॉडी आपकी साथ नहीं दे रही, शोल्डर आपके श्रिंक हुए हुए हैं। सो एक किताब आपको रेकमेंड कर देता हूँ बीइंग कॉन्फिडेंट के ऊपर, उसका नाम है फिजिकल इंटेलिजेंस। फिजिकल इंटेलिजेंस में आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी पोस्चर जेस्चर हर चीज के ऊपर दुनिया की सबसे अल्टीमेट किताब है। अगर इसको आप पढ़ लेंगे यू विल फील हेल्दी, यू विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट और आप अच्छे तरीके से अंडर प्रेशर मीटिंग्स को हैंडल कर सकेंगे, बिकॉज आपको अपनी फिजियोलॉजी का पता चल जाएगा। So what is the name of the book and author कौन है? फिजिकल इंटेलिजेंस। फिजिकल इंटेलिजेंस एक ही बुक है पूरी दुनिया में आज तक जो लिखी गई है। अमेरिकन ऑथर्स हैं, 2 फीमेल ऑथर्स जिनका नाम है क्लेयर डेल, पैट्रिशिया पैटन। ये मैं चैट के अंदर इसकी नाम और ये ऑथर के नाम लिख के मैं आपको सबके लिए कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। टू एवरीवन, थैंक यू सर। ठीक है। और इसके बाद दूसरी बात है, मिसाल के तौर पे जब खड़े होने का स्टाइल, बैठने का स्टाइल चेयर पे, ये सब चीजें इसके अंदर बड़ी क्लियरली डिफाइन की गई है और मैंने इस किताब से बहुत हेल्प ली। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मानो लोग कहते हैं ना कि जॉब कैसे करें और क्या करना चाहिए और फ्री टाइम में क्या करना चाहिए। ये किताब जब मुझे एक मेरे दोस्त ने गिफ्ट की, 2700 की ये किताब थी, फिजिकल इंटेलिजेंस। सो मैंने इस किताब को पढ़ा तो मैंने अप्लाई किया, उसके अकॉर्डिंगली वॉक जॉग करना शुरू की, इसके अकॉर्डिंगली मैंने छोटी छोटी एक्सरसाइज दी हुई है वो करना शुरू की और मैंने देखा कि मेरी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट आया। मैंने अपना बगैर एक्सरसाइज किए, बगैर डाइटिंग किए 10 kg वेट लॉस किया है, वेट लॉस किए मैंने। आई स्टार्टेड गेटिंग बैक इनटू शेप, सो आई स्टार्टेड लविंग माय लाइफ। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा है और मैंने इस किताब को एक दफा नहीं 4 दफा पढ़ा। मैंने इसकी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बनाई और एक कंपनी है सेंचुरी पेपर मिल्स, मैंने उनको भेजा। मैंने कहा कि आपके इंजीनियर्स को पढ़ाऊंगा मैं फिजिकल इंटेलिजेंस फॉर इंजीनियर्स, ताकि इंजीनियर्स की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको 75,000 रुपीज पे करेंगे फॉर 1 डे, आप आए और पढ़ाएं। सो एक किताब जिसको पढ़ के हम ना खुद फायदा लेते हैं ना किसी और को देते हैं और वो साइड पे रख देते हैं, उसी किताब से मैंने अपना फायदा हासिल किया, अपनी लाइफ चेंज की, मैंने पढ़ाया, मैंने उससे अर्निंग की। तो ये स्टूडेंट्स के लिए है कि किताब पढ़ें तो उसको इस तरीके से पढ़ें कि वो आपकी लाइफ में कोई फिजिकल एंड फाइनेंशियल चेंज लेके आए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने की हद तक नहीं। सेकंड क्वेश्चन आपका था जी जी आपका एक और क्वेश्चन। Can we write any voluntary experience in CV to enhance our CV? Any voluntary experience in professional organizations like Rotary, International, etc. So voluntary डेफिनेटली count करता है। बहुत डिपेंड करता है कि उस जॉब की रिक्वायरमेंट है या नहीं। अगर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो ना लिखें, अगर रिक्वायरमेंट हो सकती है तो डेफिनेटली लिखें। मैंने तो अपने सीवी में लिखा है, इसलिए मैं आपको ये दिखा भी रहा हूँ स्क्रीन शेयर करके कि अपने सीवी में इसलिए लिखा है कि ये देखें, सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस, लायंस क्लब इंटरनेशनल एंड रोटरी क्लब्स इंटरनेशनल। अगर आप ये लिखेंगे, अब मेरा सीवी क्योंकि अभी मुझे नहीं पता, मैंने किसी कंपनी के लिए नहीं बनाया, मैंने तो अपनी सारी चीजों को कंपाइल कर दिया ना। मैंने हायर एजुकेशन कमीशन के साथ काम किया, मैंने वो भी लिख दिया। आइडिया ट्रेनिंग में विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे पढ़ाता हूँ, मैंने वो भी लिख दिया। सो जब मुझे इसी सीवी को
किसी स्पेसिफिक कंपनी को अप्लाई कर जॉब एप्लीकेशन के साथ भेजना होगा तो शायद मैं इसको रख लूं या डिलीट कर दूं, बट राइट नाउ मैंने मेंशन किया होगा। ठीक है, ठीक है सर। सर एक any- लास्ट क्वेश्चन, जी। one last question and then we'll be wrapping up with our session. What are the best freelancing websites? मैंने तो एक ही वेबसाइट पे काम किया, दैट इज फाइवर। And अदरवाइज Upwork के बारे में सर, उसके बारे में भी बहुत सुना हुआ है। फ्रीलांसिंग की एक और वेबसाइट है, ऐसी काफी हैं, बट स्टार्ट विद फाइवर एंड देन यू कैन एक्सपैंड योर हॉरिजन लाइक फाइवर। अपवर्क पे भी चले जाएं। वालेकुम अस्सलाम। यस सर, आई वांट टू ऐड समथिंग। यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस जो हो रहा है फाइवर और अपवर्क के साथ। सो इन स्टार्टिंग हमारे पास अपवर्क इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि हमें सबसे क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो हम अपनी जो है वो प्रेजेंटेशन डायरेक्ट क्लाइंट को पहले देते हैं। जबकि फाइबर में फिर वो क्लाइंट जब सर्च करता है तो फिर वो टॉप जो हमारे पास होते हैं डेवलपर्स उनको ही सर्च। ऐसे ही वो आपको बड़ी स्ट्रांग एसईओ करनी पड़ती है उसमें, तब जाके आपको क्लाइंट्स मिलते हैं। यू आर राइट। सो Thank you so much for your time, sir. It was a really interactive session and I really hope हमारे students को काफी helpful advice, आपकी precious advice मिली हो। आप अब वो I really hope कि वो इसके ऊपर act भी कर सकें और अपनी CVs और अपने interviews को अच्छा बना सकें। Thank you so much for your time, sir. most welcome, most welcome. Thank you so much. Thank you so God much, bless sir. you all. Allah Hafiz.